everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. This is me Sanat Bhardwaj bringing to you another video on current affairs from the section of polity. Now UPSC Civil Services Examination में polity से related जो भी पिछले हफ्ते में 5th से लेके 11th of February के बीच में जितने भी important issues रहे हैं, let's discuss them. Important as far as prelims are concerned, mains are concerned, mains के paper are concerned. And before that, before going into those various aspects, I want to talk about myself. I am delivering this lecture for the first time in this component. But otherwise, you will be listening through my lectures as far as governance is concerned, governance related topics are concerned in GS2 particularly, and उससे आगे भी धीरे धीरे करके हमारी engagements बढ़ने वाली हैं. Now the thing is that I always structure my lecture in two parts. One, the psychological part, the other one being the content part. The psychological part is because whenever you are preparing for your exam, आप civil services की तैयारी करते हैं या आप state services की भी अगर तैयारी करते हैं, everybody wants to appear for state services as well. एक अहम मुद्दा होता है जो आपको केटर करना होता है, एंड वो अहम मुद्दा होता है हाउ यू शुड बी रिमेनिंग साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग एंड प्रूडेंट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग. बिकॉज तैयारी करते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि माहौल डल हो जाता है. तैयारी करते वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है दैट इट यू टेंड टू stop listening to yourself. Your connection with the world, it is stripped off, और वो snip हो जाता है जिसकी वजह से आप अपने तक सीमित रह जाते हैं. So किस तरीके से you should be goal oriented, we would be talking about it through my entire lecture series, and धीरे धीरे करके CBL में आपको अंदाज़ा होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको मेंटर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को अचीव कर सकें. So the first thing that I want to talk about, and the first thing or the first sermon that I would give you, that would be by knowledge we approach God. So your target in life should always be aligned with this approach. Whenever you enter into any field, you should start thinking about how should I gain more knowledge, how should I gain more acumen or wisdom in that field. So even in UPSC, and this is in line with our attempt, in line with our approach as far as civil services is concerned, because civil services में आप करते ही ये हैं जहाँ पे आपको नॉलेज अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग इश्यूज की गेन करनी होती है. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन. यू नीड टू वर्क अपॉन नॉलेज, यू नीड टू वर्क अपॉन विजडम, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर लाइफ. सो बाय नॉलेज यू अप्रोच गॉड. एक ना मेंटल होराइजन बड़ा होना शुरू हो जाता है. अगर स्पिरिचुअल सेंस में आपको बताऊं तो इन स्पिरिचुअल सेंस व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी टॉक अबाउट से सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सो अगर मैं उसका क्लोज रिलेशन विद साइंस ढूंढूं, so self-realization or self-actualization is basically pushing the limits of your own brain. So धीरे धीरे जैसे जैसे आप नई नई चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं लाइफ के अंदर, आपका ना एक पर्सपेक्टिव, एक होराइजन, एक कलाइडोस्कोप बड़ा होना शुरू हो जाता है. See, I used different words in this single sentence, and this is how you should write your essays as well, right? So I would be giving you different strategies, tools, techniques during the course of this entire engagement. So make sure that you listen carefully. Now let's start with the last week's current affairs as far as polity is concerned. So the first topic that we will be covering is pertaining to Rashtriya Yuva Sashaktikarn Karyakram. Now this is one important aspect जहाँ पे एक बात जो है मेरे जहन में आ रही है, and ये एक study थी which was conducted by ILO, जिसमें ये बोला था कि इंडिया का 40% यूथ ना एजुकेशन के अंदर है, ना किसी सर्विस के अंदर है, ना किसी एम्प्लॉयमेंट में है, ना किसी वोकेशन में है. सो ना तो वो एजुकेशन के अंदर है, ना वो वोकेशन के अंदर है, ना वो एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम पार्ट टाइम के अंदर है, तो फिर वो है कहाँ? सो वो बेसिकली लगा हुआ है टिकटॉक की वीडियोस बनाने में बेसिकली, राइट? सो तो 40% यूथ इज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट प्रोसेसेस ऑफ द कंट्री. तो स्टेट में जो ये ह्यूमन कैपिटल है ये वेस्ट जा रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है. ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स ने इसको जो है लॉन्च किया, एंड दिस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ
अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नाउ ये लोकसभा में इस प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बताया और इस प्रोग्राम के 7 सब कॉम्पोनेंट्स हैं। सो यूपीएससी इफ इट वर टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसका एक कंपोनेंट है, इनमें से किसी एक कंपोनेंट को बता दिया जाएगा, राइट तो इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है, बिकॉज इन द पास्ट वी हैव सीन दैट प्रीलिम्स के अंदर ना हमें कंपोनेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं स्कीम से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल शुरुआत हुई थी अटल पेंशन योजना की, तो अटल पेंशन योजना के अंदर जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, आपने ध्यान दिया होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं, तो उसके अंदर उन्होंने इसी तरीके से सवाल पूछा कि भैया अटल पेंशन योजना के बेनिफिशियरीज कौन कौन है। सो वी वुड बी फोकसिंग ऑन, एज फार एज वेरियस स्कीम्स आर कंसर्न, वी वुड बी फोकसिंग ऑन बेनिफिशियरीज, we would be focusing on outlays. So इस तरीके की चीजों के ऊपर फोकस करना है, या फिर मिनिस्ट्रीज। ये 2014-15 से ही इनफैक्ट ये दौर रहा है जहां पे यूपीएससी वेरियस मिनिस्ट्रीज पूछ लेती है कि फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनको हमें ध्यान देना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सर्टेन सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स टू दिस टॉपिक, जो कि मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल 40% of Indian youth is nowhere to be seen in the mainstream developmental processes। ना वो एजुकेशन में है, ना वो एम्प्लॉयमेंट में है, ना वो वोकेशन में, तो फिर वो है कहाँ? ना रिसर्च डेवलपमेंट में है, साइंस एंड टेक में नहीं, लगा कहाँ हुआ है? वो बेसिकली आईसीटी में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? टिकटॉक वगैरह में लगा हुआ है। एंड दैट इज वेयर, एंड दिस इज फॉर अ फैक्ट, टिकटॉक, पबजी, ये सब चल रहा है, इंस्टा भी चल रहा है आजकल, राइट, मीम्स पे चल रहा है। यूथ is basically उसका जो potential है, it is being marred by social media addiction। So ये topic, of course, if you are preparing for civil services, this is something that you would be working upon। Now the scheme राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, this is an ongoing central sector scheme। So central sector scheme as opposed to being a centrally sponsored scheme। So central sector scheme वो है जहां पे फंडिंग सारी की सारी सरकार से आती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो है जहां पे स्पॉन्सरशिप मिलती है सरकार से। तो स्पॉन्सरशिप हमेशा पूरी नहीं होती, कुछ हद तक होती है। सो जनरली अगर मैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करूं तो वो स्पॉन्सरशिप हो जाती है 90%, 10%, राइट। जनरली 50-50 भी होती है कुछ कंपोनेंट्स की, राइट, 70-30 भी कई जगहों पर होती है। सो इस तरीके से ये स्पॉन्सरशिप वेरी करती है, सेंटर की तरफ से कितना पैसा आएगा वो वेरी करता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इस स्कीम के अंदर इससे ज्यादा वजन नहीं है। ऑल यू नीड टू नो इज वेरियस कंपोनेंट्स। नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल यूथ कोर, र भी हलंत के साथ, र भी हलंत के साथ, कोर्प्स नहीं होता, ये कोर होता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट। सो ये बेसिकली 14 साल की उम्र तक के आसपास के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें उनकी डेवलपमेंट और उनके नॉट जस्ट फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद वोकेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स, वो सारी चीजें इसमें केटर की जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल कोऑपरेशन से रिलेटेड एज फार एज यूथ अफेयर्स आर कंसर्न, और उसके अंदर चाहे वो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर हो, चाहे वोकेशन के अंदर हो, चाहे वो आप इंटर कंट्री अगर माइग्रेशन ऑफ यूथ है उसकी बात करें, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। फिर यूथ हॉस्टल्स बनाने की, ताकि वो जब माइग्रेट करते हैं सो दे हैव अपॉर्चुनिटी, दे कैन वर्क ऑन वेरियस अपॉर्चुनिटीज, चाहे वोकेशन है चाहे कुछ है, ताकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज इजीली अवेल की करवाई जा सके। माइग्रेशन शुड नॉट बी एन इम्पेडिमेंट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। So that is why this particular component helps in this regard। फिर उसके बाद स्काउट्स एंड गाइड्स से रिलेटेड असिस्टेंस की अगर हम बात करें तो नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स, व्हाट डज स्काउट्स एंड गाइड्स एक्चुअली डू? This actually pushes the youth towards nation building practices, and similarly I remember in my school days I was delivering some support to local community, and उसको हम श्रमदान कहते हैं। आपने भी श्रमदान बहुत जगह किया होगा। तो ये बेसिकली दिस इज नॉट जस्ट lending your efforts, it also has an impact on your cognitive abilities as well। The way you perceive the world, आप दुनिया को जिस तरीके से, जिस नजरिए से देखते हैं, तो वो श्रमदान के जरिए वो बदल जाता है, आपका पेरिस्कोप बहुत ही ग्राउंडेड हो जाता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और ये यूथ को सही डायरेक्शन, सही दिशा देने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली वी हैव नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम, जहां पे यंग लीडर्स, यूथ से लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो
उनको इम्बाइब की जाए, उनको इम्पार्ट की जाए. That is what this component works upon. So basically एक overall youth development हो सके, so ये all these components they work on this matter. Now apart from that, the next important topic that we have to cover, and इसका बहुत ही, जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन आता है. So what is Kapila campaign? किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अगर मैं इंडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR ये इंडिया में दो प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट पेटेंट और एक प्रोसेस पेटेंट. अगर आपको ध्यान है 2017 के अंदर यूपीएससी ने इन दोनों के ऊपर सवाल पूछा हुआ है. And I hope that you understand what product patent is and what process patent it. Assuming that this is a pen जो कि मैंने invent किया है, and अगर मैं इस पेन को इसका IPR लेना चाहता हूं और मैं इसको पेटेंट करवाना चाहता हूं, तो बेसिकली, एंड पेटेंट इज नॉट दी ओनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. आपके कह लीजिए, मान लीजिए आपका कोई आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल दीज वीडियोस, राइट, तो उनका ट्रेडमार्क हो सकता है, CBL का ट्रेडमार्क है, फॉर एग्जांपल दैट यू सी इन एवरी फर्स्ट स्लाइड. एंड हमारे जो PDFs मिलते हैं तो अलग अलग ट्रेडमार्क्स भी होते हैं. फिर उसके बाद देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स. IPR इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, उसमें पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, फॉर एग्जांपल लॉ में. अच्छा, बाय द वे, आई एम नॉट जस्ट अ लॉयर और से not just a law graduate, I'm also an engineer. So engineers in the house, 3 cheers. And I am not the engineer, the kind of engineer you make fun of. I'm not a computer science engineer. I'm a chemical engineer. So you don't have any connection with chemical engineering. आपने शायद नाम भी कम सुना होगा. And I've graduated from Punjab University. Now coming back to the topic, intellectual property rights. Basically यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ product patent, process patent की बात कर रहा हूँ, because this has recently been in news as far as vaccines are concerned. So you need to have some insight about IPR. पर्टिकुलरली प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट. जब तो मैं किसी प्रोडक्ट को कहता हूं कि ये मेरा अधिकार है, आप कोई भी यही सेम चीज या इससे सिमिलर चीज नहीं बना सकते हैं, तो मैं कहता हूं प्रोडक्ट पेटेंट है. या मैं आपको कहता हूं कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है लेकिन मैंने A+B=C किया है, तो अगर आप D+E=C करते हैं तो आप बना सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज अ प्रोसेस पेटेंट. आप A+B मिला के C नहीं बना सकते. सो ये प्रोसेस मैंने पेटेंट करवा लिया, ये आप यूज नहीं कर सकते, ये आप यूज कर लीजिए. सो यहां पे प्रोसेस पेटेंट में विंडो निकल कर आती है फॉर जेनेरिक मेडिसिन्स एंड इंडिया वांट्स टू reclaim that tag of being a pharmacy to the world, and that is why we are using process patents. And आपने ये 2017 का पेपर देखा होना चाहिए, उसमें किस प्रकार का सवाल आया होता. बहुत ही अच्छा सवाल था, हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से उसमें परफॉर्म भी किया था. Now as far as Kapila program is concerned, so Kapila program की अगर मैं बात करूं तो as regards other programs as well, so ये एक एक्रोनिम है, सरकार को थोड़ा आदत हो गई है, आप उसी प्रकार से एक्रोनिम्स बनाती है. लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें जो A है इसका क्या लेना देना है ये नहीं समझ आता. बट हाँ, पेपर में अगर सवाल आएगा तो इसमें सिंपल ABCD वाला क्वेश्चन आएगा, 1 and 2, 2 and 3 वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है. सिंपल थिंग, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन. नाउ आई नो KAPILA में ये कैसे फिट होता है ये नहीं समझ आता है, बट स्टिल आपको ये याद रखना है, ये I फॉर इंटेलेक्चुअल, P फॉर प्रॉपर्टी है, ऐसे ही याद रखना है, और उल्टा दिया हुआ है. सो दिस कपिला प्रोग्राम इज बेसिकली अबाउट लिटरेसी एंड पेटेंट अवेयरनेस कैंपेन, जो कि अभी रिसेंटली शुरू हुआ था पिछले साल. ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लास्ट वीक, क्योंकि इसके रेपरकशंस में आपको GS1 में सवाल आ सकता है, GS2 के अंदर सवाल आ सकता है, एसेज में एक कंपोनेंट निकल कर आ सकता है. इफ यू हैव एन ऑप्शनल फॉर पॉलिटिकल साइंस, इफ यू हैव अफिनिटी फॉर पॉलिटिकल साइंस, वहां क्वेश्चन आ सकता है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में सवाल आ सकता है. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू कवर इट रियली होलिस्टिकली. नाउ we are talking about sub categorization of other backward classes. अब इससे related prelims fact वो ये है कि NCBC was recently given a constitutional status. By what constitutional amendment act? It was 102nd. ये चीज पता होनी चाहिए. Now
अपार्ट फ्रॉम दैट ये पता होना चाहिए बिफोर दिस अमेंडमेंट एंड बिफोर द क्रिएशन ऑफ एनसीबीसी द रोल फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज केटर्ड टू बाय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। ठीक, तो ये पता होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है। उसके बाद अगर देखें तो अभी रिसेंटली जी रोहिणी कमेटी का गठन किया गया है, वो ये देखेंगी कि क्या सब कैटेगराइजेशन की जानी चाहिए और की जानी चाहिए तो किस तरीके से होनी चाहिए। कारण क्या है इस कमेटी के गठन का वो ये देख लेते हैं, एंड सब कैटेगराइजेशन का मायने क्या है वो समझ लेते हैं। नाउ बेसिकली हमें अगर देखें तो ओबीसी कैटेगरी को 27% रिजर्वेशन ऑफर की गई है और 2020 के अंदर ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये लीगल डिबेट वापस से खड़ी कर दी कि क्या सब कैटेगराइजेशन की जरूरत है एससीज और एसटीज के अंदर, और इसका मेजर लिंक है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। अब वो कारण क्या है उससे रिलेटेड कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो आप अपने एसेज में अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, एंड द पीडीएफ अलोंग विद दिस लेक्चर विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू, सो यू मेक श्योर वो डेटा पॉइंट्स जो हैं आप खास तौर पर अलग से मेंशन भी कर लें। नाउ दिस डिबेट अराइजेस आउट ऑफ द परसेप्शन दैट ओनली फ्यू एफ्लुएंट कम्युनिटीज, सिर्फ गिनी चुनी कम्युनिटीज, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ जो आपकी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो गिने चुने करीब 10 के करीब ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको ये बेनिफिट चाहता है, एंड देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज जिनको जीरो बेनिफिट होता है। सो वी वुड बी केटरिंग टू दोज फैक्ट्स। फटाफट से चलते हैं। सो व्हाट इज सब कैटेगराइजेशन? इट इज बेसिकली क्रिएटिंग कैटेगरीज विद इन कैटेगरीज, राइट। सो अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं तो उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एंड ये माना जा रहा है कि अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स हैं टू दी ओबीसीज इट इज इनइक्विटेबल, और 900 के आसपास जो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, 980 समथिंग क्लासेस जो एग्जिस्ट करती हैं, उनके अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किसी को ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं, किसी को कम। स्पेशल अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में ही बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट केम अप इन एससी कम्युनिटीज जहां पे आपने इन ओबीसी कम्युनिटीज जहां पे आपने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी शुरू किया था। नाउ विल डिस्कस एवरीथिंग विद रिगार्ड टू दैट एज वेल। नाउ एज फार एज द कमीशन वाज कंसर्न्ड, कमीशन 2017 में बैठाया गया था। एट द टाइम 12 हफ्ते दिए गए थे कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिएगा, लेकिन वो हिंदुस्तान है तो थोड़ा सा डिले होता रहता है, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट factors, what were the terms of references that were offered or rather referred to this कमीशन? टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस मतलब जो मैंने आपको कहा कि भैया मुझे इस मुद्दे पे सोच समझकर रिपोर्ट बना के दीजिए, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में क्या कुछ इंक्लूडेड था? द एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो रिजर्वेशन की बात अगर हम करें तो किस किस को ज्यादा बेनिफिट हुआ है, किस किस को कम बेनिफिट हुआ है, ये आप रिपोर्ट में बताइए, और एक मैकेनिज्म निकाल के दीजिए, क्राइटेरिया निकाल के दीजिए जिसके बेसिस पे, जिसको आप साइंटिफिक तरीके से निकाल के देंगे, जिसके बेसिस पे आप सब कैटेगराइजेशन करेंगे विद इन दी ओबीसी कम्युनिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट you need to take up the exercise of identifying the respective castes, respective communities or subcastes या फिर उनके synonyms in the central list of OBCs और उनको क्लासिफाई कीजिए into सब कैटेगरीज। सो बेसिकली सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है। दिस इज ऑल टू मच ऑफ वर्बोसिटी, लेकिन आपने सिर्फ एक ही चीज पे ख्याल रखना है, दैट इज सेंट्रल लिस्ट की बात हुई है अभी तक। दूसरी चीज जिसके ऊपर आपने ख्याल रखना है कि एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। तीसरी चीज फ्रेज जो आपने ध्यान रखना है, इक्विटेबल एंड इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट द कमीशन वाज आल्सो प्रपोज्ड कि भाई आप एक ऑल इंडिया सर्वे करवा लीजिए जिसके अंदर आप कास्ट वाइज पॉपुलेशन जो है वो देख सकते हैं ओबीसीज की, लेकिन इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया था। दिस आइडिया वाज ड्रॉप्ड क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिकल टर्मोइल हो सकता था, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती थी ऐसे सर्वे को कंडक्ट कराने में। सो अगस्त 31 2018 के अंदर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम 2021 का जो सेंसस है वो ही यूज करेंगे एज फार एज द डेटा फॉर ओबीसीज इज कंसर्न्ड। तो जो डेटा कलेक्ट होगा उसी को ही हम यूज करने जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट what should be the extent of OBC's recruitment and कैसा हाल है, सूरत हाल अभी तक क्या है? एक्चुअली सही मायने में अगर आपको बताएं तो सिर्फ और सिर्फ
ग्रुप सी के अंदर इफ यू नोटिस हियर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप ग्रुप ए की बात करें तो 16 के आसपास है, ग्रुप बी की बात करें 13.38 के आसपास है, एंड इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप सी 17.72 के आसपास है। नाउ द थिंग इज, सवाल यहां पे ये भी बन सकता है, यूपीएससी कैन पुट अप दिस फैक्ट एज वेल, कि मान लीजिए कि सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किस ग्रुप में है, इज इट ग्रुप ए, वो कह देगी कि नहीं ग्रुप बी में है। सो एक ट्विस्ट के साथ यह सवाल पूछा जा सकता है, तो सबसे ज्यादा वाला और सबसे कम वाला ये आपको पता होना चाहिए, राइट। सो सबसे कम है ग्रुप बी के अंदर, सबसे ज्यादा है ग्रुप सी के अंदर। एंड एक और इशू निकल कर आता है एज फार एज रिजर्वेशन इज कंसर्न, कहते हैं कि जब ओबीसी कैटेगरी के अंदर यह लिख दिया जाए नन फाउंड सूटेबल, तो फिर वो सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को चली जाती है, जिसकी वजह से मिस अप्रोप्रिएशन एक तरीके की हो जाती है। जो सीट्स जानी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस को वो जनरल कैटेगरी को चली जाती है। लेकिन इससे रिलेटेड जो डेटा है वो अभी एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने कंपाइल नहीं किया है, उसके ऊपर उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। बट स्टिल दिस इज वन इशू। एनएफएस ये क्या है, ये रिसेंटली न्यूज में था, इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ये बच्चों वाला सवाल होगा। यूपीएससी वुड रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस फैक्ट। ये ऑप्शन रूल आउट करने में बेनिफिशियल हो जाता है, राइट। सो कुछ चीजें इसलिए भी करनी पड़ती हैं, तो मेरे भाई कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती हैं। जो करनी पड़ती हैं वो है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल एज फार एज मेंस इज कंसर्न, और मेंस में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड अगर सवाल मान लीजिए आता है, तो उसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये बहुत जरूरी है। 97% ऑफ ऑल जॉब्स एंड एजुकेशनल सीट्स ये दे हैव गॉन टू ओनली 25% ऑफ सब कास्ट ऑफ ओबीसी। तो ओबीसी पॉपुलेशन में जो डिविजन्स हैं, जो डिस्टिंक्शंस हैं, उन डिस्टिंक्शंस में सिर्फ 25% ऐसी कास्ट, सब कास्ट हैं जिनके पास सारी, ऑलमोस्ट सारी, 97% के आसपास सारी की सारी सीट्स गई हैं एजुकेशन की, चाहे सारी की सारी जॉब्स की सीट्स गई हैं। सो दिस इज अ मेजर कंसर्न। बाकी के 3% की जो सीट्स हैं वो करीब करीब कह लीजिए 75% लोगों के आसपास जा रही हैं। 3% के आसपास सीट्स 75% के लिए एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद 25% के आसपास ऑफ दीज जॉब्स एंड सीट्स हैव गॉन टू जस्ट 10 ओबीसी कम्युनिटीज। सिर्फ 10 कम्युनिटीज हैं जो कि इस 97% में से भी 25% अगर देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 कम्युनिटीज के पास गई है। आउट ऑफ 983 ओबीसी कम्युनिटीज 37% have zero reservation or rather zero representation. They do have reservation on paper but they do not have representation anywhere. चाहे आप jobs की बात करें, चाहे educational institutions की बात करें, 37% ओबीसी को पता ही नहीं है कि उनको रिजर्वेशन मिली हुई है, और अगर पता है तो उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पा रही हैं। सो इफ वी आर एबल टू सब कैटेगराइज दी ओबीसी कैटेगरी, और उससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट पर्टिकुलरली इन लोगों को होने वाला है, राइट। एंड सबकास्ट 994 ओबीसी सबकास्ट हैव अ टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली 2.68%. सो ये बेसिकली इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ resources और say opportunities as far as educational seats and jobs are concerned, ये उसकी बात कर रहा है। So all you need to do is remember 2 to 3 points. ये 0 वाला पॉइंट आपने याद रख लेना है और ये 97 वाला पॉइंट याद रख लेना है। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। This is the major part that you can use in your mains. Next, we come to an important aspect as far as agriculture is concerned. Agriculture has been in vogue for the past 2 to 3 months now. Per drop more crop. So ये जो per drop more crop scheme है, ये किस major scheme का सब component है? पहली चीज तो ये it is a sponsored, centrally स्पॉन्सर्ड स्कीम। मैं बार बार इन कीवर्ड्स को हाईलाइट करता रहूंगा, आपने कीवर्ड्स हमेशा याद रखने हैं। तो ये पहली चीज, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज एन अम्ब्रेला स्कीम जिसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। उसमें से एक कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसको केटर कौन सा डिपार्टमेंट करता है? 2014 के अंदर एज फार एज आई रिमेंबर यूपीएससी ने इस तरीके का सवाल पूछा था, जहां पे उसने फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करता है फॉर एग्जांपल, वो उस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया था, मैच द फॉलोइंग वाला। सो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए दैट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर्स वेलफेयर केटर्स टू पर ड्रॉप मोर क्रॉप, PDMC।
जस्ट इन केस यू नीड टू लर्न दी शॉर्ट फॉर्म। अच्छा यहाँ पे लिखी भी हुई थी मैंने, हाँ राइट 2015 से चली हुई स्कीम है। वैसे तो ये सवाल नहीं आएगा अगर 2015 से पहले से चली होती, या कह लीजिए 1990s से 80s से, उससे पहले से, उसके बाद से, इसके आसपास की अगर कोई स्कीम है तो उसका साल पूछ लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बार सवाल आया था 2015 के अंदर एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम, जहां पे वेरियस जो पेंडिंग मान लीजिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको टेकअप करने की बात हो रही थी। व्हाट डज पीडीएमसी केटर्स टू? इट फोकसेस ऑन एनहांसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी। सो बेसिकली जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, सो छोटी छोटी पाइप्स जो हैं वो यहां पे ड्रॉ कर दी जाएंगी, पुट इन कर दी जाएंगी, जो कि धीरे धीरे फार्म के अंदर पानी की सप्लाई करेगी। अब फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस रीजन, ये रीजन इसको पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन पानी जब आप ऐसे बोरवेल से कह लीजिए या कह लीजिए पंप से सप्लाई करते हैं तो वो पूरे के पूरे लैंड में जाता है। हमें पूरे लैंड में पानी की जरूरत ही नहीं है, हमें तो रूट्स के पास लैंड, जो लैंड एग्जिस्ट करता है, जमीन एग्जिस्ट करती है, सॉइल एग्जिस्ट करती है, वहां पे पानी की जरूरत है। सो बेसिकली एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, वाटर की वेस्टेज को कम करने के लिए, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स दैट इज वाटर, उसको केटर करने के लिए वी हैव स्टार्टेड विद द स्कीम ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप। एक बार ध्यान से इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। सो बेसिकली दिस रीजन, इस तरीके से यू आर कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ वाटर। तो आप दिन के उन आवर्स में पानी सप्लाई कर सके जिन आवर्स में मिनिमम इवैपोरेशन होती है, क्योंकि इवैपोरेशन से भी वाटर लॉसेस होते हैं। सो एंड किस टाइम पे पानी प्लांट जो है सबसे ज्यादा टेकअप करता है, ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आप पानी सप्लाई करेंगे तो पानी से इफेक्टिवनेस एंड यील्ड में इंप्रूवमेंट आएगी। दिस इज समथिंग दैट ICAR एंड वेरियस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जैसे पटियाला के अंदर है वो केटर करती हैं, वो चीजें, ये इस तरीके की चीजों के ऊपर रिसर्च वर्क चलती है। नाउ एज फार एज द टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर कंसर्न, दीज वर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ये साइंस एंड टेक से भी रिलेटेड है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं पॉलिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात करूं, सो ये क्या क्या काम करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहली चीज तो ये माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने की बात करता है। पर्टिकुलरली माइक्रो इरिगेशन होता है एक छोटे पीस ऑफ लैंड के ऊपर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट इट फोकसेस ऑन एनहांसिंग द वाटर यूज एफिशिएंसी। अब efforts are being made to converge this scheme with various other schemes, other components of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? अटल भूजल योजना, नमामि गंगे डिस्ट्रिक्ट्स, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, PM कुसुम स्कीम। इसके अंदर है क्या? ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान। सो बेसिकली as far as energy requirements are concerned in the farm sector, the scheme is catering to that. So आपसे अगर PM कुसुम के बारे में पूछ लिया जाए तो हमारे गवर्नमेंट स्कीम कंपोनेंट्स के थ्रू आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। So we are not discussing it here. If you would want तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको अलग से कवर भी कर लेंगे। You always can put up your references. Now apart from that, with a view to provide impetus to micro irrigation, micro irrigation अपने आप में एक अहम मुद्दा है as far as agriculture is concerned, and इसे हम GS3 के कंपोनेंट में अलग से अच्छे से केटर करते हैं। So यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है that इंडिया के अंदर वी आर वर्किंग विद माइक्रो इरिगेशन फंड, जिसके अंदर हमने 5,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस रखा हुआ है नाबार्ड के साथ। सवाल यहां से निकल कर आता है MCQ बेस्ड UPSC के अंदर कि नाबार्ड इज हैंडलिंग माइक्रो इरिगेशन फंड और ये 500 करोड़ का कॉर्पस है। 500 करोड़ का है कि 5,000 करोड़ का है, मैंने जान के बोला है। इस तरीके का चेंज UPSC ने 2017 में किया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपने, यू शुड बी वेरी, एक सही वॉरियर वो है जो अपनी पिछली मिस्टेक्स से या कह लीजिए पिछले एक्सपीरियंसेस से सीख के अगला कदम उठाए। सो आई एम टेलिंग यू दिस दैट दिस फिगर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 5,000 करोड़, अदरवाइज आप सोचेंगे माइक्रो इरिगेशन है थोड़ा पैसा होगा 500 करोड़ होगा, नहीं 5,000 करोड़ होता है। इन मिस टाइपिंग्स के लिए आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, जहां पे अगर 7% का लोन है तो जो फार्मर है उसको सिर्फ 4% जो है एक सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है एज फार एज द लोन्स आर कंसर्न।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सीड का मतलब क्या होता है? जब आप उसको बीजते हैं तो उससे मल्टीपल चीजें निकल कर आती हैं, तो वही काम है इस फंड स्कीम का, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। व्हाट वुड इट डू? ये अगले 4 साल 2021-22 से शुरू होते हुए क्या करेगा? इट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद एन इफेक्ट फ्रॉम 2021 अप्रैल, इस साल से शुरू होगी। एम क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप्स जिनका कॉन्सेप्ट और जो बेसिकली प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में, कॉन्सेप्ट कार्स फॉर एग्जांपल, उनकी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रायल्स में काम कर रहे हैं, मार्केट एंट्री कर रहे हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एनी लैब वर्क, उसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वर्किंग ऑन एन इशू जो कि रिलेटेड है स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन नाउ द स्पाइडरमैन से इशू ये रिलेटेड था, और मैंने रिसर्च वर्क, बिकॉज आई हैव डन माय बैचलर्स एंड मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग ना, तो उसमें मैंने ये काम किया था। अच्छा, 2 काम किए थे, पहला तो स्पाइडरमैन से रिलेटेड था, दूसरा किसी और चीज से रिलेटेड था। बोथ ऑफ दीज रिसर्च वर्क्स वर ऑन द टॉपिक ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें मैंने जो किया वो आप हैरान हो जाएंगे। बेसिकली स्पाइडर लिया और उसके वेब को एनालाइज करना शुरू किया कि उसकी स्ट्रेंथ स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग क्यों है। How can it withstand somewhere around 3,000 to 4,000 times heavier stuff on its own weight? So वो सारी चीजें अगर मैं उसको एक्स्ट्रापोलेट करना चाहूं तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उस टाइम पे अगर मैं उसको कमर्शियलाइज करना चाहता हूं या मैं उसको केवलार फॉर एग्जांपल मान लीजिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में जो काम आता है, अगर मैं उसको रिप्लेस करवाना चाहता हूं विद दिस, क्योंकि ये इंपैक्ट सहन कर सकती है। जो आपका एक स्पाइडर वेब होता है, मकड़ी का जाला होता है, वो इंपैक्ट अच्छा सहन कर सकती है। ऊपर से कोई भी चीज आएगी तो उसमें फंसती है। तो उसी मेश को अगर मैं यूज करके मान लीजिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाता हूं, तो वो बहुत सस्ता नहीं होगा। स्पाइडर कितने के मिलते हैं? स्पाइडर तो फ्री मिलते हैं। उनको जाला बुनना है, उनका जाला यूज करना है, और अगर मुझे पता चल जाए किस एंजाइम से वो जाला बना रहे हैं, 5 एंजाइम्स होते हैं जिन एंजाइम्स को यूज करके कोई भी स्पाइडर, किसी भी प्रकार का स्पाइडर जाला बना सकता है। मुझे दिक्कत यह आई थी कि स्पाइडर जो है वो मैंने जिस एनवायरनमेंट में रखा था उस एनवायरनमेंट को उसने पसंद नहीं किया। ये प्रेडेटरी स्पीशीज होती हैं स्पाइडर्स ना, इनको आपने खुले में रखा तो ये खूब सारा जाला बुन देती हैं, लेकिन अगर आप इनको बंद डिब्बे में रखना शुरू कर देंगे तो ये सिकुड़ के रह जाएंगे, ये खाएंगे पिएंगे नहीं, एंड इनफैक्ट ये अपनी स्पीशीज के लोगों को भी खा सकते हैं। सो इस वजह से आई हैड स्टॉप्ड वर्किंग ऑन दिस। देन फिर मैंने एक बहुत ही सिंपल चीज उठाई थी जो कि था नारियल के छिलके। जो नारियल पानी आप पीते हैं वो वाला नहीं, जो पका हुआ ब्राउन नारियल होता है उसके छिलके उठाए थे, उनको इंसिनरेट किया था और उनमें से कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई थी ना। खैर दैट इज समथिंग एल्स। अच्छा, वो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है इसलिए मैं काम कर रहा था, नॉट बिकॉज मुझे नारियल पानी पसंद है और नारियल मैंने इकट्ठे करते रहा, ऐसा नहीं। नाउ चलिए मूविंग अहेड, बेसिकली दिस इज to favor the incubation, the improvement of startup issues in the country. नाउ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ये सीड वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एक अगर मान लीजिए एक टॉपिक या एक इशू या एक मैटर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें तो उससे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज निकल कर आए, एंड दैट इज व्हाट दिस फंड स्कीम इज केटरिंग टू। 945 करोड़ रुपीस का इसमें कॉर्पस है। ये बेसिकली सीड फंडिंग है। सीड फंडिंग का कॉन्सेप्ट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। चलिए आगे चलते हैं। Then comes the topic where we have to study the various judicial decisions as far as infrastructure projects are concerned. नीति आयोग ने ये स्टडी कमीशन की है कि भैया जितने भी जुडिशियल डिसीजंस आए हैं पीछे कुछ समय में, गोवा के अंदर हुआ, ओडिशा के अंदर हुआ, वेरियस अदर स्टेट्स, जिन जुडिशियल डिसीजंस की वजह से जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इम्पेडिमेंट्स आए, वो रुक गए, तो वो सारी चीजें अब एक स्टडी के तहत देखा जाएगा कि उसकी कॉस्ट क्या हुई। नाउ इट इज अ वेरी ट्रिकी स्टडी, और इस स्टडी में से जो बातें निकल कर आएंगी, आई होप इट इज नॉट यूज्ड एज पॉलिटिकल लेवरेज, बट इसको आपने सही तरीके से देखना है। इन स्टडीज में से आप एक चीज निकाल सकते हैं। Now, this is, इसमें से अगर आप मान लीजिए यूपीएससी सवाल पूछती है तो सिर्फ यहां से पूछ सकती है, दैट इज कट्स, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। दिस इज सेंटर फॉर कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन, जो कि इंटरनेशनल प्रेजेंस भी रखता है।
बेसिकली ये जो जयपुर बेस्ड कट्स इंस्टीट्यूशन है ये स्टडी केटर करेगा, ये स्टडी जो है कंडक्ट करेगा। लेकिन और बोला किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग इस डेटा को किस तरीके से यूज करता है वो देखने वाली बात है। लेकिन हमने एक चीज समझनी है इसके अंदर से, दैट व्हाट दिस स्टडी कैन बी यूज्ड फॉर। दिस कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रीमलाइनिंग इफ देयर इज एनी प्रोसीजरल इशू या एलोकेशन ऑफ, मान लीजिए कोल ब्लॉक्स हैं और या माइंस हैं फॉर एग्जांपल, उनकी एलोकेशन में कोई भी इशू निकल कर आता है, यू शुड रीड आउट सच प्रोसीजरल, सच एलोकेशन वाइज किसी भी प्रकार का जो भी इशू है वो आप इनिशियल स्टेजेस में ही वीड आउट कर दीजिए, रूल आउट कर दीजिए, तो आप बेनिफिट में रहेंगे। तो आपको सरकार को जुडिशियल डिसीजंस की वजह से नुकसान नहीं सहन करना पड़ेगा, बिकॉज जब पॉलिसी रुकती है तो उससे आगे जाने वाले बहुत सारे प्रोसेसेस, व्हाट वी आर वर्किंग अपॉन पॉवर्टी एलिविएशन, वी आर वर्किंग अपॉन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो ये सारी की सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से निकल कर आने वाली हैं, क्योंकि उसी में ही सर्विसेज इन्वॉल्व है, उसी में ही मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, राइट। रॉ मटेरियल भी उसी में ही यूज हो रहा है एंड मैन पावर भी उसी में यूज हो रही है। सो दैट इज वाई अगर ये इंपेडिमेंट हो जाएगा तो इसको तो आप हटा नहीं सकते, ऑब्वियसली जुडिशरी को आप क्यों हटाएंगे, है ना। तो आपको ये जो इंपेडिमेंट्स हैं, जो जिनकी वजह से यहां पे प्रॉब्लम आती है, उन्हें दूर करना चाहिए। अगर ये स्टडी उस चीज के लिए यूज होती है तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। नाउ वी आर प्लानिंग बेसिकली टू इंटरव्यू पीपल एंड उसमें एक क्लोजर वगैरह निकालना कि प्रोजेक्ट्स कहां पे आके रुक रहे हैं, कितनी हिंड्रेंसेस आ रही हैं, व्हाट हैव बीन द इशू। पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको बताया गोवा के केस में माइंस जो है उनको एलोकेशन, उनका आवंटन रोक दिया गया था, और उसी के साथ साथ एक एयरपोर्ट का भी प्रोजेक्ट था गोवा के अंदर। सिमिलरली तमिलनाडु में थूथुकुडी जगह है, वहां पे स्टरलाइट कॉपर प्लांट था, उसको शट डाउन होना पड़ा था। सो दीज आर वेरियस एग्जांपल्स, यू डोंट नीड टू मग अप दीज एग्जांपल्स, बट आप गोवा, तमिलनाडु ये स्टेट्स के नाम याद रख सकते हैं, जो कि आप मेंस में अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं एज एन एग्जांपल। बट इन जनरल यहां पे जो इशू निकल कर आता है वो निकल कर आता है डेवलपमेंट वर्सेस जुडिशरी। Secondly, role and power of tribunals like NGT. ठीक है जी, तो ये मुद्दा निकल कर आता है। तो क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड एंड यू कैन राइट दिस क्वेश्चन डाउन एज वेल, थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू। मेरे सारे के सारे लेक्चर्स दे विल ऑलवेज बी इम्प्रॉम्प्टू, सो दैट आई वुड बी एबल टू आई वांट यू गाइज टू पिक अप ऑन द थॉट प्रोसेस, आई वांट यू गाइज टू एमुलेट द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दैट वी गाइज हैव हियर। सो इसीलिए आई विल ऑलवेज बी डिलीवरिंग इम्प्रॉम्प्टू लेक्चर्स, सो दैट आप सबको भी ये आइडिया हो कि अच्छा सोचना क्या चाहिए, किस तरीके से, किस एंगल से पकड़ना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल ट्राइब्यूनल्स की अगर हम बात करें तो रोल ऑफ ट्राइब्यूनल्स एज वॉच डॉग, प्लीज राइट डाउन, कमेंट ऑन द रोल ऑफ ट्राइब्यूनल्स एज अ वॉच डॉग, as a watchdog in Indian development story, full stop, right? So this can be one question, so make sure that you work upon this question and कोशिश कीजिएगा इसके आंसर्स अगर आप लिख लेते हैं तो you can submit it to us as well, so we can check it up. Now, apart from that, there has been one important aspect जिसकी चर्चा हमें करनी चाहिए और वो है ट्रांस फैटी एसिड्स। सो ट्रांस फैटी एसिड्स से रिलेटेड एक टॉपिक आई थिंक आपने साइंस एंड टेक में, सोशल इश्यूज में भी कवर किया होगा। द ओनली थिंग दैट वी वुड बी कवरिंग हियर इज दी पॉलिटी से रिलेटेड या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज द फूड प्रोडक्ट्स इन विच एडिबल ऑयल्स एंड फैट्स आर यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट्स, सरकार सोच रही है दैट इट शैल नॉट कंटेन इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड्स मोर देन 2%। तो ये कैप लगाने की बात की जा रही है बाय द मास ऑफ टोटल ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट इन दी प्रोडक्ट। मान लीजिए अगर 100 मिलीलीटर अगर आपके टोटल ऑयल्स उसमें प्रेजेंट है तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स 2% से ज्यादा ना हो। ये हमारा टारगेट है फ्रॉम एज ऑन एंड फ्रॉम 2022 पहली जनवरी, ठीक।
नाउ वी कम टू अनदर पार्ट जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड है। इसका एक ब्रीफ रिकैप, यू नीड टू नो दैट इंडिया की जो नेशनल अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ग्रोथ रेट, इट हैज बीन डिक्लाइनिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। पिछले एक दशक में वो ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है। व्हेन आई से ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइंड, सो बेसिकली आई मीन कि मान लीजिए ये पॉपुलेशन है और ये टाइम है, ये पॉपुलेशन है और ये टाइम है मान लीजिए। सो विद टाइम पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन कैसे इंक्रीज कर रही है? ऐसे इंक्रीज कर रही है। सो यहां पे इतने टाइम में इतनी पॉपुलेशन हो गई, इतने टाइम में सिर्फ इतनी पॉपुलेशन हुई, इतने टाइम में सिर्फ इतनी हुई, सॉरी यहां तक इतने टाइम पे इतनी हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें तो ये स्लोप बताती है क्या ग्रोथ रेट है, और ये ग्रोथ रेट पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, अब धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, इट इज समवेयर अराउंड 2.1। ठीक है जी। सो ये एक बैकग्राउंड है बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट इज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट हैज बीन इंप्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम जो कि वॉलंटरी है, पहली चीज, इट इज नॉट कंपल्सरी, वी आर नॉट चाइना, एंड एक इन्फॉर्म्ड चॉइस देता है टू द बेनिफिशियरीज। ये रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज पर्टिकुलरली दो प्रोग्राम्स इनका नाम निकल कर आया था। एक था इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि है अंतरा प्रोग्राम, दूसरा है छाया विच इज अ सेंटक्रोमन। नाउ द थिंग इज कि यहां से क्वेश्चन, बिकॉज दिस बिकम्स अ वेरी डाइसी सा टॉपिक हो जाता है, इसमें से सवाल अगर आएगा तो वो ये दो नामों से रिलेटेड आएगा, इन टू नेम्स। एमसीक्यू होता है, प्रीलिम्स बेस्ड है, एंड फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सवाल बन सकता है एज फार एज GS1 इज कंसर्न। तो GS1 में इस टॉपिक में सवाल ऐसा आता है कि फैमिली प्लानिंग या ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड मुद्दा जो बनता है। Now, how should government proceed as far as family planning policy is concerned? ये चीज भी, इसकी चर्चा अगर आप कहेंगे तो वी वुड बी कवरिंग इट स्पेशली इन दी पब्लिक पॉलिसी सेक्शन, जो कि जनरल स्टडीज के जो हमारे मेंस रिलेटेड जो लेक्चर्स चल रहे हैं, जो GS का मेंस का जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसके अंदर, आई विल बी कैटरिंग टू दैट एज वेल। सो वी हैव डिलीवर्ड लेक्चर्स ऑन जो कि आपको वेरी सून मिलना शुरू हो जाएंगे एज फार एज पब्लिक पॉलिसी इज कंसर्न, प्रेशर ग्रुप्स आर कंसर्न। तो बहुत डिटेल में, बहुत होलिस्टिक मैनर में हमने वो चीजें कवर की हैं, समथिंग दैट यू कैन यूज इन योर आंसर्स। Now, we already have a national population policy. यहां पे MCQ आ सकता है, 2000 की ये पॉलिसी है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अटेनिंग अ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। वी आर नॉट आस्किंग फॉर पॉपुलेशन स्टैग्नेशन बट स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन और स्टैग्नेशन वर्ड मैंने दो इसीलिए यूज किए हैं ताकि जब MCQs में UPSC ये सवाल पूछती है तो आपने इस वर्ड के ऊपर खास फोकस रखना है। 2045 तक हम चाहते हैं कि एक लीनियर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हो जिसको इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो केटर कर सके, राइट। एंड इसी वजह से देयर आर सर्टेन इनिशिएटिव्स जो कि वॉलंटरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरू करती है और वॉलंटरली आप उसको अवेल कर सकते हैं। टू ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन इन न्यूज, जैसे अंतरा प्रोग्राम एंड छाया प्रोग्राम। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सो मेनी अदर प्रोग्राम्स जो कि यहां पे एनलिस्टेड भी हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टपार्टम इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इनके ऊपर क्वेश्चन आने के आसार थोड़े से कम है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ कॉम्पनसेशन स्कीम फॉर स्टेरिलाइजेशन एज वेल, जहां पे एक्सेप्टर्स विच प्रोवाइड्स जो एक्सेप्ट करते हैं स्कीम के अंदर जो बेनिफिशियरीज होते हैं, लॉस ऑफ वेजेस अगर कुछ भी होता है तो उसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड की जाती है। सो ये कॉम्पनसेशन की अगर मैं बात करूं तो इस कॉम्पनसेशन को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि बेसिकली अगर लॉस ऑफ वेजेस है तो वो उसको कितना है, या मान लीजिए उसको ऑफस्प्रिंग नहीं हुआ है तो उसकी वजह से उसको कितना नुकसान हो सकता है, या स्टेट को कितना देना चाहिए, वो सारे कैलकुलेशन के अंदर जाते हैं। देयर इज कंप्लीट, फॉर एग्जांपल इवन इन मोटर व्हीकल डेथ्स एज वेल, MACT जो ट्राइब्यूनल है उसका एक फॉर्मूला सेट है, जो कॉम्पनसेशन दी जाती है वो ऐसे मनगढ़ंत कॉम्पनसेशन नहीं दी जाती है, कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होती है। देन वी हैव नेशनल फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम, जिसके अंदर इवेंचुअलिटीज ऑफ डेथ्स एंड कॉम्प्लिकेशंस आर केटर टू। अगर किसी भी प्रकार से स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशंस के चलते किसी का कोई भी नुकसान होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो we have family planning logistics management information system, LMIS, right?
जिसके अंदर सॉफ्टवेयर के जरिए आपको फोरकास्टिंग, स्मूथ फोरकास्टिंग, प्रोक्योरमेंट एंड फैमिली प्लानिंग, कमोडिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच कमोडिटीज, ये सारी चीजें केटर की जाती हैं। हेल्थ फैसिलिटीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किन किन जगहों पर आप जाकर ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। देन वी हैव मिशन परिवार विकास। सो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस टॉपिक में से आपने निकाल कर रखनी है? सो पहली चीज इज पहली चीज इज, कोई बात नहीं, इंग्लिश यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की। दूसरी चीज स्टेबलाइजेशन एंड नॉट स्टैग्नेशन। तीसरी चीज, दो हो गई थी, तीसरी होगी, तो तीसरी चीज वॉलंटरी। चौथी चीज ये स्कीम्स अंतरा एंड छाया। Apart from that, what you need to understand is we have an indemnity scheme. Apart from that, what we need to have is एक LMIS Logistics Management Information System है, जिसके अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं, और एक मिशन परिवार विकास है जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है टू इंक्रीज द एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। ठीक है जी। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरे टॉपिक में से। जो 7 हाई फोकस स्टेट्स हैं, कौन कौन से हैं जहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट इज मोर देन 3। एवरेज मैंने आपको बताया, और टोटल यहां पे दिया हुआ है जहां पे कौन से ऐसे 7 स्टेट्स हैं जहां पे एवरेज से ज्यादा है, 3 के आसपास है। सो सबसे पहले यूपी हो गया, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड असम। चंडीगढ़ नहीं है, मोहाली भी नहीं है, और राधा चंडीगढ़ तो चलिए खैर यूटी हो गया, पंजाब नहीं है, राइट। सो दीज आर अ फ्यू स्टेट्स, 7 स्टेट्स जिनका नाम आपको पता होना चाहिए जहां पे अबव एवरेज है, 3 के आसपास टोटल फर्टिलिटी रेट है। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद आशा वर्कर्स के द्वारा होम डिलीवरी भी करवाई जा रही है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, सो दैट पॉपुलेशन को हम सही तरीके से वॉलंटरली, हम वी आर नॉट चाइना, प्लीज रिमेंबर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द गवर्नमेंट शुड बी अप्रोचिंग पॉपुलेशन as a demographic factor. For that, make sure that you go through our lecture in GS2. I'll be talking about it in public policy framing and implementation processes. So population को किस तरीके से समझना चाहिए, इसकी चर्चा मैं वहां पे करूंगा, जो कि थोड़ा means oriented है, subjective है। ठीक है जी। चलिए, moving on, we need to understand what is नई रोशनी। नई रोशनी स्कीम हैज बीन इन न्यूज सिंस 2015, जब से ये इसका इंसेप्शन हुआ था। अब इसमें सिंपल बात ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से रिलेटेड है। दिस इज अ स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन। तो ये चीज आपने खास ख्याल रखनी है कि महिलाओं के लिए है। इसके अलावा भी कुछ स्कीम्स हैं जो महिलाओं को केटर करती हैं, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी वुमेन को केटर करती हैं। विल बी डिस्कसिंग दैट इन द अदर स्लाइड। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको केटर करती है। व्हाट इज इट टू डू? It is to empower and instill confidence by providing them with knowledge, tools and techniques. So basically vocational training भी इसमें आ सकती है, and interacting with government system, banks, other institutions as well. So basically जो minority women हैं उनको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश है नई रोशनी स्कीम की। Now, various other schemes and the way minority women are being catered to. Now, particularly अगर इस स्कीम की बात करें तो empowerment of the trainee women so that they become independent and confident members of the society, Indian society. The scheme provides for 6-day training program followed by hand holding for 1 year, जहां पे 1 साल तक उनकी देखरेख सुपरविजन रहती है और 6 दिन की रिगरस ट्रेनिंग रहती है। इसके अंदर वेरियस इश्यूज आर कवर्ड, लीडरशिप प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वेरियस वेज जो वुमेन जो है माइनॉरिटीज से बिलोंग करने वाली, वो गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम से बेनिफिट किस प्रकार से ले सकती हैं। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे एनलिस्टेड भी है। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर वुमेन, हेल्थ हाइजीन, लीगल राइट्स की अगर हम बात करें, राइट, तो ये सारी चीजें जो हैं गवर्नमेंट थ्रू एनजीओज कवर करने की कोशिश करती है ताकि उनके अंदर थोड़ा सा कह लीजिए सशक्तिकरण आए। नाउ द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू एनजीओज, जैसा कि मैंने बताया, अंडर दी नई रोशनी स्कीम, जो कि इसके अंदर एनरोल्ड हैं वो एनजीओज केटर करती हैं। इसके अलावा देयर आर सर्टेन स्कीम्स, फॉर एग्जांपल सीखो और कमाओ स्कीम, लर्न एंड अर्न स्कीम है, जिसके अंदर 33% ऑफ टोटल बेनिफिशियरीज आर वुमेन। नाउ दिस स्कीम डज नॉट ओनली केटर टू वुमेन, लेकिन महिलाएं जो हैं 33% हैं। तो कंपैरिजन यहां पे ये हो सकता है, नई रोशनी
रोशनी इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, राइट? तो ऐसे याद रखिएगा कि नई रोशनी स्कीम ओनली केटर्स टू द फीमेल पॉपुलेशन। सीखो और कमाओ स्कीम अगेन माइनॉरिटी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें वुमेन बेनिफिशियरी सिर्फ 33% हैं। उसके बाद नई मंजिल स्कीम है, इसमें भी वुमेन बेनिफिशियरीज हैं, बट टू द ट्यून ऑफ 30% ओनली। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इन तीनों स्कीम्स का कंपैरिजन अगर आ जाए तो ये आपको ध्यान में रखना है, नई मंजिल स्कीम और सीखो और कमाओ स्कीम। नाउ दीज स्कीम्स आर बेसिकली फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, पर्टिकुलरली वुमेन फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक, चलिए, नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है कि मूछें थोड़ा सा सेट करते रहनी चाहिए, नहीं तो एक अनरूली हो जाती हैं। There are, जैसे गुड हेयर डे, बैड हेयर डे, वैसे there are good mustache day, bad mustache day. I think that today is a bad mustache day, but a very a peculiar day that my मूछें they decided to be behaving in this manner. Otherwise बहुत सही रहती हैं, जठ दी मुछ W वर्गी। राइट नाउ द 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? एन के सिंह है। इस पे सवाल नहीं आने वाला है ऑब्वियसली। सवाल जो आएगा वो बेसिकली ये आएगा कि भैया जो डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस हुआ है, डेवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ है। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, इट इज एट द सेम लेवल ऑफ 42% और यहाँ पे 41%। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग हिंदू तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता भी होगा, लेकिन जस्ट फॉर अ ब्रीफ रिकैप, बेसिकली हुआ क्या है, क्योंकि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम अ यूटी। सो जम्मू एंड कश्मीर में ओवरऑल मिला के 1.7% के आसपास का खर्चा होता था, जो कि जाता था ये 42% के अंदर। अगर मैं 42% का, क्योंकि ये खर्चा जो है खत्म हो गया है, क्योंकि अब ये खर्चा सरकार के ऊपर आ गया, सेंटर के ऊपर आ गया, इसको माइनस करें तो इट टर्न्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 40.3%। तो इसीलिए कहा गया है इट इज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, बिकॉज अब हम 41% जो है डेवोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है जी, दिस इज फ्रॉम टैक्स रेवेन्यूज। Now it has recommended maintaining the vertical devolution at 41%, which is same as what the previous 14th Finance Commission had recommended. But percentage में difference है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी ने 2017-18 के अंदर ये सवाल पूछे हैं। सो मेक श्योर दैट यू नो दिस, राइट? द चेंज ऑफ स्टेटस इज बिकॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बिकमिंग न्यू यूटीज। This 15th Finance Commission is a bit peculiar because अभी हुआ क्या है कि because अभी इसको एक तो एक्सटेंशन मिली है, और उस एक्सटेंशन के अलावा इस समय के दौरान कोविड जैसी महामारी होके हटी है, which has caused the government कि भैया अभी रुको, अभी मत जाओ, हमें थोड़ी सलाह और देके जाओ, तो हम किस तरीके से फिस्कल प्रूडेंस मेंटेन कर सकें, क्या हम FRBM एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करें, कुछ करें, ऑल ऑफ दिस वी विल बी कवरिंग राइट नाउ। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज हैं फॉर द पीरियड ऑफ कमिंग 5 years, 2026 तक के आसपास की बात करी है उन्होंने, 2025-26 तक के आसपास की, तो अगले 5 सालों के अंदर इट वुड बी समवेयर अराउंड 135.2 लाख करोड़ रुपीस, रट्टा नहीं लगाना है। आउट ऑफ दैट द डिवाइजेबल पूल, जिसमें से आप सेसेस जो हैं, सर चार्जेस जो हैं, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जो है, वो सब चीजें निकाल देंगे, जो बेसिकली उक्का सुक्का जिसको कहते हैं खर्चा निकाल देंगे। तो वो खर्चा निकालने के बाद जो डिवाइजेबल पूल है जो स्टेट्स के पास जाएगा, वो करीब करीब 103 लाख करोड़ रुपए होंगे, जो कि स्टेट्स को जाएंगे। नाउ दिस इज अ फन फैक्ट एज फार एज योर मेंस इज कंसर्न्ड, योर आंसर्स आर कंसर्न्ड। तो अगले 5 सालों में इतना शेयर जो है स्टेट्स के पास जाना चाहिए। एज फार एज 41% ऑफ डिवाइजेबल पूल अगर कहें तो इसमें से ये निकल कर आती है फिगर समवेयर अराउंड 42.2 लाख करोड़ रुपीस, जो कि 2021 से 2026 तक स्टेट्स को मिलेगी। इसमें अगर मैं टोटल ग्रांट्स मिला दूं जो कि 10.33 लाख करोड़, हमेशा याद रखिएगा डेसिमल के बाद इट इज नॉट 33, इट इज 33। ठीक है जी, ये बोलने का तरीका भी समझ लेना जरूरी है थोड़ा। सी, एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, so you do not become an officer after clearing the interview. You are already an officer and then you clear the interview. So you have been like this your entire life, and if you have not been like this your entire life, so you have been like this through the course of your preparation, and वो चीज आप अपनी personality में imbibe कर लेते हैं, something that we here at CBL we have we are hell bound to cater to, and आपको
हर प्रकार से, चाहे आप कंटेंट वाइज कहें, चाहे आप सोफिस्टिकेशन वाइज कहें, चाहे आप डिलीवरी वाइज कहें, चाहे हर प्रकार से, जिस प्रकार से आपको हमारी ज़रूरत है, जिस तरीके से आपको डिलीवरेंस करनी चाहिए अपनी लाइफ में भी, वी वुड बी केटरिंग टू दैट एंड मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन एज वेल। नाउ सो छोटी छोटी चीज़ों में परफेक्शन लानी बहुत ज़रूरी है, राइट, एंड कनेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। सो दैट इज व्हाई व्हाट आई वुड ट्राई टू डू इज थ्रू द कोर्स ऑफ दीज वीडियोस आई वुड ट्राई दैट यू एंड आई वी बोथ मेक अ कनेक्शन विद ईच अदर, सो दैट हम लंबे समय तक एक दूसरे की मदद कर सकें। मेरी मदद आप तभी कर पाएंगे अगर आप सही रास्ता पकड़ लेंगे। जो सोच मैं आपको देना चाह रहा हूं, तो अगर आप वो पकड़ लेंगे, मैं वो सलमान खान वाले मुद्दे पे चला हुआ कि मैं 3 लोगों की मदद करूंगा, आप जाके आगे 3 लोगों की मदद करेंगे, मैं उस कॉन्सेप्ट में निकला हुआ हूं। ठीक है जी, चलिए नाउ सो बेसिकली इतना पैसा बन के आता है कि टोटल इसके आसपास आपको स्टेट्स को अगले 5 सालों में देना है। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जो 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा है, चाहे आप डेवोल्यूशन की बात करें, चाहे आप ग्रांट्स की बात करें, तो एस्टिमेटेड 34% ऑफ द टोटल ग्रॉस रेवेन्यू रिसीव्ड्स जो कि सरकार के पास होगी, वो बेसिकली जाएंगी स्टेट्स की तरफ, राइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या फिस्कल स्पेस अवेलेबल है यूनियन के पास कि वो किसी प्रकार से भी एफआरबीएम एक्ट को थोड़ा सा, उसकी लिमिट्स को थोड़ा पुश कर सके या किसी तरीके से ओवरस्टेप करके एक्स्ट्रा खर्चा कर सके? तो बिल्कुल है, राइट। दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल अस कि नेशनल डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज की अगर हम बात करें, या फिर कह लीजिए यूबीआई का कॉन्सेप्ट जो है पिछले साल वापस से उठ गया था, तो वो चीज पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की या डेवोल्यूशन की बात करें, तो वो भी 15th फाइनेंस कमीशन ने मुद्दा उठाया था। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन अगर आप देखें तो आगे मैंने यहां पे ये डायग्राम भी यूज किया हुआ, वही चीज यहां पे मैंने लिखी हुई है, तो एक बार डायग्राम से देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एज फार एज इनकम डिस्टेंस इज कंसर्न, तो इसको वेटेज जो है उसकी वेटेज रिड्यूस की है, दैट हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड टू फ्रॉम 50 to 45%, जस्ट इन केस यू आर अनेबल टू सी थ्रू राइट नाउ। अगर ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लरी है, आई नो दिस इज ब्लरी, बट अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो आपको पीडीएफ में ये पिक्चर मिल रही है, तो यू कैन ओपन अप द पीडीएफ अलोंग साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट एक नया एंट्रेंट है एंड वो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। 15th फाइनेंस कमीशन कहता कि जो डेमोग्राफिकली सही प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं उनको थोड़ा सा आपको इंसेंटिव भी देना चाहिए, तो 12.5% उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है बेसिकली, एंड उस वजह से जो है उस तरीके से इसमें डेवोल्यूशन है। देन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में अगर बेहतर परफॉर्म किया है या उससे रिलेटेड कोई इशू है तो उसमें भी आपका जो शेयर था, सी देयर इज 2 टाइप्स ऑफ डेवोल्यूशंस, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। उल्टा बता दिया, एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। सो वर्टिकल होती है कि ऊपर से नीचे कितना आया, फिर जब एक मुद्दे में आ गया तो उसमें हॉरिजॉन्टली कितने सेक्शंस में पैरेलली आप उसको डिवाइड करेंगे। सो बेसिकली सारे स्टेट्स में, सेंटर से स्टेट्स, ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अमंग द स्टेट्स, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, इन सब में क्या वेरिएशन है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्ट इन केस एनीवन हैज एन इशू इन दिस रिगार्ड। ठीक है जी, चलिए पहले तो स्क्रीन थोड़ी सी साफ कर लेते हैं। नाउ फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का शेयर बढ़ा है, इनकम डिस्टेंस का शेयर गिरा है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डेवोल्यूशन होती थी, जो वेटेज दी जाती थी, अच्छा एक और चीज, वेटेज जैसा कोई शब्द होता नहीं है, हम इन जनरल सेंस यूज कर लेते हैं, बट वेटेज जैसा कोई शब्द नहीं होता, वेट ही शब्द होता है। ठीक है जी, तो उसका जो वेट है वो रिड्यूस हुआ है। हम वेटेज मैं भी यूज करूंगा, आप भी यूज करेंगे, बट याद ये चीज रखनी है। ठीक है जी, तो वो 27.5% से सिर्फ 15% रह गया, क्योंकि यहां से मुद्दा निकलकर यहां पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में चला गया। सो स्टेट्स परफॉर्मिंग बेटर, दे आर बीइंग रिवॉर्डेड। सो इट हैज आल्सो डन वन मोर थिंग, एंड दैट इज इट हैज रीइंट्रोड्यूस्ड द टैक्स एफर्ट क्राइटेरियन। अगर आप बात करें तो एक कमीशन है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन, टार्क, तो उसकी रिपोर्ट भी आई हुई है। सो उस रिपोर्ट और उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस को हमने ध्यान से कवर करना है, पर्टिकुलरली अगर आप पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वाले व्यक्ति हैं। तो जनरल स्टडीज में आप सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ सकते हैं, सिर्फ आप रिकमेंडेशंस की समरी पढ़ सकते हैं। 1-2 भी याद रह गई तो आप उसको मेंस में यूज कर लेंगे, इतना याद रख लेंगे तो बहुत। ठीक है जी, सो ये क्राइटेरिया
जो है वो दोबारा से इंट्रोड्यूस किया है। जस्ट बिकॉज ये क्राइटेरिया दोबारा से इंट्रोड्यूस किया है, इसी वजह से मैंने ये 2 बार टाइप किया है। चलिए, नाउ as far as revenue deficit grants to states are concerned, they are to basically be emanating from the requirement that every state has to meet as far as their fiscal needs are concerned. What is revenue deficit? वो definition मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. It is basically the difference between the revenue or current expenditure and revenue receipts. तो आपने कितना खर्चा किया और कितना आपके पास पैसा आया, उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है. ठीक है जी. इट हैज बीन रिकमेंडेड कि जो पोस्ट रेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हैं ओवर द 5 years इट शुड बी समवेयर अराउंड दिस मच 2.94 लाख करोड़ रुपीस. और अगर आप बात करें नंबर ऑफ स्टेट्स क्वालिफाइंग फॉर दिस डेफिसिट ग्रांट, ये शुरू में 17 होने चाहिए और दिस शुड बी रिड्यूस्ड टू 6 बाय द एंड ऑफ 26th ईयर और रादर 5th ईयर 2026 तक. कारण क्या है? शुरू में आपको सपोर्ट करनी है, धीरे धीरे करके पहले हैंड्स ऑन सपोर्ट होगी कि हाँ हम चीजें प्रोवाइड करें, धीरे धीरे हैंड्स ऑफ सपोर्ट होनी चाहिए एंड इट शुड बी रिड्यूस्ड, द नंबर शुड बी रिड्यूस्ड. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. फिर उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स और ग्रांट्स ऑफर किए जाने चाहिए स्टेट्स को, ये बात बोली गई. सो ये जो है ये बेसिकली 4 मेजर थीम्स के ऊपर बेस्ड होंगी जो परफॉर्मेंस बेस्ड हैं. राइट, परफॉर्मेंस बेस्ड की अगर मैं बात करूं तो इस डायग्राम में देखेंगे तो यहां पे वेरियस ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बेस्ड यहां पे आपको पता चल जाएगा. नाउ 4 मेन थीम्स कौन सी हैं? पहला है सोशल सेक्टर, जहां पे हेल्थ और एजुकेशन आ जाते हैं, ऐसे मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं. दूसरा है रूरल इकोनॉमी, जहां पे फोकस ज्यादातर या तो रूरल रोड्स पे होगा या फिर एग्रीकल्चर पे होगा. उसके बाद आ जाता है, बिकॉज रूरल इकोनॉमी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्री. क्यों? ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, 70% लोग, 70% वर्कफोर्स एंड 46% ऑफ नेशनल इनकम इज कमिंग आउट ऑफ रूरल इकोनॉमी. इसीलिए इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है. और तीसरा कंपोनेंट, पहला हो गया आपका सोशल सेक्टर, दूसरा हो गया रूरल इकोनॉमी, तीसरा हो गया आपका गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. अब जहां पे इंप्लीमेंटेशन डेफिसिट को दूर करना है उसके ऊपर भी तो कुछ काम करना होगा कि नहीं करना होगा. इसी वजह से इन रिफॉर्म्स को तवज्जो दिया गया है. और चौथा है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जहां पे फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर के बेसिस में जहां पे आपके जो डिस्कॉम्स हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ऊपर जो लोन है, जो कर्जा है वो दूर हो रहा है, इस तरीके के कंपोनेंट्स इंक्लूड होंगे. एंड दिस प्रोवाइड्स फॉर एन इंपॉर्टेंट एडिशनल बोरोइंग विंडो फॉर द स्टेट्स, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगी. ठीक है जी. सो एज फार एज फिस्कल स्पेस इज कंसर्न, मैंने आपको बताया था कि 34% ऑफ द एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट्स, एस्टिमेटेड नॉट एस्टिमेटेड, हो जाता है कभी कभी ना चाहते हुए भी एक्सेंट आ जाता है. कौन सा? हरियाणवी. नाउ सो एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट्स, I belong to a horizon plethora of states. Do not confuse me for being belonging to Haryana. My father's clan wo belong to Haryana, my mother's clan belong to Punjab. My father was otherwise born in Himachal. My grandparents, they have been they belong to UP, Uttarakhand. My grandfather, he belonged to Lahore. Right? Rather, I would not say belong to Lahore, but he studied and taught there. So I belong to a series, a generation of educationists. My great grandmother was a headmaster in some school, so I belong to that family. So we have always been, my family, my father, my mother, everybody wanted me to enter into this field of teaching, and even I thought that I really was catering to what was needed. Right? So I'm trying. नाउ सो एडिशनल बोरोइंग रूम हो जाता है स्टेट्स के लिए अगर आप परफॉर्मेंस बेसिस पे, पर्टिकुलरली अगर आपने पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स किए हैं तो आपको एक्स्ट्रा ग्रांट्स मिल सकती हैं. एंड फिस्कल स्पेस की अगर हम बात करें सेंटर के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर की जेब खाली हो जाएगी, ठन ठन गोपाल हो जाएगा, उल्टा करके देखोगे कुछ नहीं निकलेगा. 34% जो है वो जा रहा है स्टेट्स को, जो डेवोल्यूशन है प्लस ग्रांट्स हैं, टोटल 34% जा रहा है, बाकी का सारा यूनियन के पास बच रहा है. That is why we have fiscal space कि अगर आप UBI जैसी कोई चीज भी शुरू करना चाहते हैं तो you can do that. And in fact the 15th Finance Commission, ये XVFC क्या है बार बार देख रहे हैं अगर आप स्क्रीन के ऊपर,
V is 15th FC's फाइनेंस कमीशन। इसने कहा है कि FRBM एक्ट के अंदर भी मेजर चेंजेस और रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है एंड इट रिकमेंडेड दैट द टाइम टेबल फॉर डिफाइनिंग एंड अचीविंग डेट सस्टेनेबिलिटी may be examined by a high powered intergovernmental group। सेंटर स्टेट का एक इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप जो है वो डिफाइन कर दिया जाए, जो कि ये डेट सस्टेनेबिलिटी जो एनवायरमेंट है, अगर आप देखें तो जो डेट टू जीडीपी रेशो है, डेट टू जीडीपी रेशो वो सेंटर का कम हो रहा है कंपैरेटिवली इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स एंड स्टेट्स का बढ़ रहा है। तो ये उस डेट सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है कि जो स्टेट्स भी जो लोन्स उठा रहे हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, Punjab is also seeking loans, Haryana is seeking loans, and various other institutions, they are coming to India and focusing on individual states for their growth trajectory। तो उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उनकी फिस्कल प्रूडेंस खत्म हो जाए, सेंटर तो एफआरबीएम चिल्लाता रहे और स्टेट्स जो हैं उसको केटर ना करें, सोचे नहीं सस्टेनेबल होना उनकी अप्रोच। ठीक है जी, सो दैट इज व्हाई। अच्छा, इसके अलावा भी 15th फाइनेंस कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट्स को भी ग्रांट्स देने का वादा करवाया है और सरकार जो है 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज करेगी यूएलबीज को, अर्बन लोकल बॉडीज को। वो 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? बेसिकली दे विल बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड डिफरेंट नॉर्म्स दे हैव बीन यूज्ड टू गिव ग्रांट्स और द फ्लो ऑफ ग्रांट्स टू ईच बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड एस्पिरेशंस। नाउ सो बेसिकली इसके अंदर से एक और फन फैक्ट निकल कर आता है जो कि एमसीक्यू का एक पोटेंशियल क्वेश्चन निकल कर आता है, एंड दैट इज दिस पोर्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली मिलियन प्लस, एम इधर रह गया, मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड। सो ये चैलेंज फंड कहां है, ये सवाल। So ये grants are proposed only for cities and towns having population less than 1 million. For million plus cities, 100% grants are performance linked. बाकी जो 100 जो मिलियन से नीचे जो पॉपुलेशन है, मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख से नीचे वाली जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रांट्स प्रपोज की जाएंगी। 10 लाख से ऊपर वाली पॉपुलेशन वाली जो सिटीज हैं उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स होंगी और सारी की सारी ग्रांट्स, उसमें कोई भी सेट मिनिमम पैटर्न नहीं होगा, उसके ऊपर ऐसा नहीं हो कि मिनिमम पैटर्न आपको मिनिमम इतने दे दिए उसके ऊपर इतना नहीं। सो एमसीएफ एक चैलेंज फंड, एक मिलियन प्लस सिटीज के सामने जो चैलेंज आते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें अर्बन रिसोर्सेज हैं, सर्विस हैं, सिविक कम्युनिटीज हैं, ऑल दीज थिंग्स वो केटर करेगा ये फंड। और सारी की सारी जो कह लीजिए इसमें ग्रांट्स आएंगी, दे वुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड। सो दिस अमाउंट इज टू बी लिंक्ड टू परफॉर्मेंस, चाहे आप एयर क्वालिटी में उनका काम की बात करें, चाहे सर्विसेज लेवल की बात करें, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ये सारी चीज, हाइजीन, अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर एग्जांपल, राइट। उसके बाद SWM, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर के अंदर ग्रांट्स जो है वो अनकंडीशनल होंगी, कोई परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होंगी। एंड इस कमीशन ने बोला है कि जो ग्लोबल एवरेज जो बोली गई है 8% तक बढ़ाने की, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो सिर्फ 5% ही कहा है। ये 8% तो यूके जैसी कंट्रीज के अंदर है ये खर्चा, 8% 9% के आसपास। इंडिया का करीब करीब 1.2% है, तो उसको कहा है कि आप प्लीज इतना कुछ तो लिहाज करो माथुर साहब, लखनऊ में, राइट। तो इस लखनऊ की ही मूवी थी जॉली LLB 2, है ना। सो 1.2% से बढ़ा के 8% तक लेके जाया जाए वेरी सून, राइट। नाउ एक और बात बोली डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड और एक बात बोली थी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। सो विल हैव टू कवर दैट, है ना, बहुत जरूरी चीजें हैं। नाउ वन थिंग इज, उन्होंने बोला कि जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है उसके अंदर एक नॉन लैप्सेबल फंड बना दीजिए विच शुड बी टाइटल्ड एज मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, MFDIS बनाने का एक सुझाव दिया 15th फाइनेंस कमीशन ने। ठीक है जी, और इसमें आप एक टोटल इंडिकेटिव साइज बता दीजिए और 2021 से 2026 तक इस फंड को चलाइए। 2.3 लाख करोड़ रुपीस उसमें सैंक्शन कर दीजिए पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से ही। ठीक है जी, ताकि प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहे थोड़ा सी चीजें, और कंटिजेंसी फंड को ना यूज करें। कंटिजेंसी फंड को आप दूसरे और मैटर से रिलेटेड
जो इश्यूज हैं उसमें यूज करें। उसके बाद डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मिटिगेशन फंड्स जो हैं दे शुड बी सेट अप एट बोथ नेशनल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल, एंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की प्रोविजंस हैं उनके तर्ज पर ही होना चाहिए। इट शुड बी इन लाइन विद दैट ओनली। सो उससे अलग हटकर कोई बात नहीं कही। उसके बाद जो मिटिगेशन फंड है इट शुड बी यूज्ड फॉर दोज लोकल लेवल एंड कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस। अगर लोकल एरिया में जैसे मान लीजिए किसी पंचायत के अंदर कोई दिक्कत आ रही है वहां तक जाके इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लोकलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, एंड इट शुड प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली सेटलमेंट्स, राइट। सो एक करीब 1.6 लाख करोड़ रुपीस का कॉर्पस बनाने की बात कही है, जिसमें से सेंटर का जो कह लीजिए कंट्रीब्यूशन होगा दैट वुड बी 1.2 लाख करोड़, और स्टेट की तरफ से जो शेयर आएगा दैट शुड बी समवेयर अराउंड 37,000 करोड़ ओनली। ठीक, तो सेंटर का बड़ा रोल रहेगा, योगदान रहेगा, स्टेट्स का थोड़ा कम रहेगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर दैट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। नाउ दिस इज अ जनरल स्कीम। इस स्कीम को रिवाइज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस वाज रिसेंटली इन न्यूज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अदर कंपोनेंट्स आपको बाकी सारे लेक्चर्स में मिल ही जाते हैं। So just a brief recap about this scheme. This was recently in news, and प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो एलिजिबल विमेन एंड बेनिफिशरीज हैं वो हैं 1.75 करोड़ विमेन, एलिजिबल विमेन, जो कि 2020 फाइनेंशियल ईयर के अंदर उन्होंने बेनिफिट जो है यूज किए हैं, who have been benefited. A total sum of rupees 1.95 crore rupees this has been dispersed इतने बेनिफिशरीज को। ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने की जरूरत क्या है? दिस इज अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम विच इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। पहली चीज 2017 की ये स्कीम है, और इसके अलावा वेरियस अदर कंपोनेंट्स, बेनिफिशरीज कौन कौन है ये सारी चीजें देख लेते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, क्या है? स्पॉन्सर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है, एग्जीक्यूट वो कर रहे हैं। कैश बेनिफिट्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तरीके से दी जाती हैं, पर्टिकुलरली टू केटर टू कॉम्पनसेट फॉर वेज लॉस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। नाउ टारगेट बेनिफिशरीज कौन है? PWLM, ये वर्ड आप बार बार देखेंगे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, सॉरी प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। सो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में, PSU में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, फॉर एग्जांपल माय मदर इज वर्किंग विद अ PSU, तो वो PSU के अंडर अगर वो हैं तो वो स्कीम के बेनिफिशियरी नहीं हो सकते हैं। सो इस तरीके से आपने याद रखना है। कोई भी अगर PSU में काम कर रहा है वो नहीं होगा, या फिर उससे सिमिलर बेनिफिट्स अगर कोई और लॉ से वो अवेल कर रहे हैं तो वो इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते हैं। तो बेसिकली इस स्कीम के तहत 3 पोर्शंस में 5,000 रुपए आपको मिलते हैं। ठीक है जी, सारी एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को 2017 से फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली। और इस स्कीम के थ्रू भी हम नज थ्योरी को जो है यूज कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, व्हाट इज नज थ्योरी, एंड वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इट इन आवर मेंस ओरिएंटेड जनरल स्टडीज के जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें भी। नाउ कैश बेनिफिट होता है 5,000 का, 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिलता है। अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जरूरत है आपको, एंटीनेटल चेकअप की जरूरत है, राइट। प्री नेटल एंटीनेटल चेकअप मतलब प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट बर्थ डिलीवरी, ऑल ऑफ दिस। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ भी होना जरूरी है, एंड फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीन भी चाहिए बच्चे का। सो दिक्कत यहां पे ये आती है कि इतने ज्यादा कंडीशंस हो जाने की वजह से ये स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारे इंपेडिमेंट्स आ जाते हैं। दैट इज व्हाई वी नीड टू वर्क अपॉन द इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस। ये थोड़ा स्मूथ फंक्शनिंग होना चाहिए। सो जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ, they should not be receiving any benefits from any similar benefits from any other law for the time being in force। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रधानमंत्री का जननी सुरक्षा योजना है उसके तहत अगर आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं तो आपको नहीं रोका जाएगा। उसको मिला के अगर आपको बताएं तो कुल मिला के करीब 6,000 रुपए एक महिला को मिल जाते हैं। ठीक है जी। सो द डिस्टिंक्टिव फीचर जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था वो ये था कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इजाद किया गया है, उसको बनाया गया है फॉर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, दैट इज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
का कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि ट्रैकिंग करेगा कि किस महिला को कितना बेनिफिट मिल गया है, क्या उसने ये चीज करवाई है, नहीं करवाई है, उसने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए नहीं करवाए। सो बेसिकली एक कन्वर्जेंस ऑफ the scheme implementation. Secondly, ruling out or weeding out any extra or wastage of resources or beneficiaries. कोई भी अगर डुप्लीकेसी है उसको दूर करने के लिए। नाउ एज फार एज जननी सुरक्षा योजना इज कंसर्न, जस्ट इन केस एक ब्रीफ रिकैप, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है पहली चीज। उसके अलावा इसके बेनिफिशियरीज कौन है? इसके बेनिफिशियरीज बेसिकली आर यूज डिसाइफर्ड और it is implemented as per NFHS data। NFHS 5 का जो डेटा है कई बार टंग ऑफ स्लिप हो जाता है, राइट? बोलते बोलते आई थिंक आप भी बहुत समय से मेरे साथ बैठे हैं, मैं भी आपके साथ बहुत समय से खड़ा हूं। इतना दिख रहा है ना, तो इससे नीचे खड़ा ही हूं, ऐसे ऐसे रोल नहीं कर रहा हूं। नाउ बेसिकली यहां पे एक डिफरेंस है। द ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एज फार एज जननी सुरक्षा इज कंसर्न, एंड इट प्रोमोट्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। तो जो वो घर में डिलीवरीज होती हैं उनको अवॉइड करके इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए डिलीवरीज को, वो ज्यादा फोकस है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। नाउ बिहार हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट of 34 and infant mortality rate of 47 और under 5 mortality rate of 56 across 22 surveyed states and UTs। ये चीज आपको याद रखनी है अगर आप अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। केरला हैज रिपोर्टेड लोएस्ट डेथ रेट्स। ठीक है जी, इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ फैक्ट इन योर एसेज एंड अदरवाइज एज वेल। एज फार एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज कंसर्न, तो उसका भी डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। इंडिया हैज डिक्लाइंड। इंडिया का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था वो 113 था 2016-17 में, अब 16 से 18 के बीच में ये आया है 113 में, पहले था 122। सो 9 पॉइंट्स की गिरावट आई है 2 सालों के अंदर, 2 इयर्स के अंदर, एंड 130 हुआ करता था उससे पहले। सो बेसिकली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है डिक्लाइन हो रहा है। इससे पता चलता है जो आप स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ये डेटा कौन निकालता है? दिस इज द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल फॉर सैंपल सर्वे रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS। ये डेटा निकालता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक चीज निकल कर आती है दैट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स हैव बीन डिक्लाइनिंग ओवर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। ये यूपीएससी इस तरीके के सवाल पूछ रही है, एनालिटिकल क्वेश्चंस, तो बी वेरी ऑफ दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 3.1 टारगेट इज केटरिंग टू दिस। यूनाइटेड नेशंस ने भी कुछ सिमिलर टारगेट सेट किए हुए हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है इट शुड बी लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। ठीक है, 1 लाख बच्चे अगर पैदा होते हैं जो जिंदा पैदा होते हैं, उसमें अगर 70 महिलाएं मरती हैं तो वो लिमिट रखी हुई है कि हद से हद 70 वुमेन शुड डाई। ओवरऑल वर्ल्ड एवरेज की हम बात कर रहे हैं, एंड उसी के चलते हमारे पास एक नेशनल हेल्थ मिशन भी है जिसके अंदर एक कंपोनेंट काम करता है, एंड दैट इज सेफ मदरहुड इंटरवेंशन कंपोनेंट। तो उसके तहत भी, एंड मातृ वंदना योजना एंड जननी सुरक्षा योजना, इन सब के तहत प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को बेनिफिट करने की कोशिश की जा रही है। एज फार एज जननी सुरक्षा योजना इज कंसर्न, ये बेसिकली आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स के थ्रू स्कीम की इंप्लीमेंटेशन होती है, जहां पे असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट की मदर की क्या एज है, बच्चे कितने हो चुके हैं। क्योंकि पीछे जो हमने बात की है उसके अंदर हमने स्पेसिफिकली ये देखा है कि फर्स्ट चाइल्ड बोला गया है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज इट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट परिवार पहचान पत्र। ये जो है बेसिकली एक स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एज अपोज्ड टू आधार। आधार में जहां एक इंडिविजुअल व्यक्ति को आप आइडेंटिफाई करते हैं, यहां पे पूरी एक फैमिली को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको यूज किया जाएगा फॉर बेनिफिट ट्रांसफर। और एक ये पेपरलेस, फेसलेस, स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस बेनिफिशियरी स्कीम्स, वो डिलीवरी ऑफ स्कीम्स एंड बेनिफिट्स जो कि सरकार ऑफर करती है वो फोकस किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इस स्कीम के अंदर और क्या चीजें हैं? आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत बार हो गया, नहीं? Apart from that, under the scheme, each family would be considered as a single unit, एक single unit, and family IDs जो हैं वो लिंक कर दी जाएंगी। आधार कार्ड्स को क्लब करके एक फैमिली का देखा जाएगा। एक फैमिली को यूनिट बना के
स्कीम इंप्लीमेंटेशन या बेनिफिशियरी या बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे. So it will also enable automatic selection of beneficiaries for various schemes. जब पता होगा कि ये एक ही परिवार का है तो इस परिवार को कितनी सब्सिडी जा रही है ये भी पता चल जाएगा. पता चले कि एक परिवार 20 लोगों का है तो 20 लोगों को सब्सिडीज तो ज्यादा सब्सिडी की जरूरत होगी ना, उसको फूड रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होंगी. सो प्लानिंग कैन बी डन अकॉर्डिंगली, राइट. नाउ द ऑब्जेक्टिव इज to create an authentic, verified, reliable data for all families in हरियाणा. इसमें एक चीज है जो खास है जो यहाँ पे नहीं लिखी है, वो ये है कि ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी. माइग्रेंट वर्कर्स because they would be able to gain some form of benefits out of this scheme. ठीक है जी. So make sure that you understand that. Apart from that, coming to the next topic, that is unified portal of गोबर्धन. सो गोबर्धन बेसिकली आपको लगता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड होगा, किसी से रिलेटेड होगा, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ये स्कीम इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? सो फर्स्ट थिंग दिस इज टू एंश्योर क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्रीज. पहली चीज. और ये किस कह लीजिए स्कीम का सब कंपोनेंट है? इट इज स्वच्छ भारत ग्रामीण. और किसके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. सो इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है. एक यूनिफाइड पोर्टल क्रिएट किया है फॉर गोबर्धन. सो व्हाट इज द बेनिफिट? इकोनॉमिक बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इट विल स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी, क्योंकि कन्वर्जेंट अप्रोच होगी फॉर बायोगैस प्रोजेक्ट्स एंड मॉडल्स एंड इनिशिएटिव्स. सो ये ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया प्लस जो प्रोग्राम है ओडीएफ प्लस, उसके अंदर आता है जहां पे आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को रूरल एरियाज में भी लेके जाते हैं, जो कि सिटीज का एक फोटे रहा है. तो रूरल एरियाज में लेके जाएंगे जहां से आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का सेग्रीगेशन और उसका कह लीजिए उसको खत्म करना, उसको डिके करवाना, वो सारी चीजें उनकी मैनेजमेंट, इसके बेसिस पे परफॉर्मेंस ऑफ गोबर्धन स्कीम जो है वो देखी जाएगी. टू द ग्रेट एक्सटेंट इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कंपोनेंट. ठीक है जी. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज it is to be used as synchronization effort with other schemes. For example, एक सतत प्रयास है sustainable alternative towards affordable transportation, जहां पे CBG मतलब compressed biogas प्रोडक्शन प्लांट्स जो है वो हमने बनाने हैं, वो प्रोडक्शन प्लांट्स हमें कमीशन करने हैं. एंड यूजिंग बायोगैस वी वुड एंश्योर मार्केट लिंकेजेस फॉर यूज ऑफ बायोफ्यूल इन ऑटोमोटिव फ्यूल्स. इनफैक्ट ऐसा ही नीति आयोग का भी कुछ प्लान है एंड उसने मेथनॉल से रिलेटेड कुछ recommendations वगैरह दी हैं. We will have to take care of that as well. In the upcoming lectures we'll discuss that as well. Methanol India का जो प्रोग्राम नीति आयोग ने शुरू किया हुआ है. Then उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है क्योंकि आप प्लांट सेटअप करेंगे, बेटर एनवायरमेंट होगा. These are basic अब फॉर यूपीएससी लेवल this becomes a very basic terminology. अपार्ट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सेविंग्स भी होगी, क्योंकि बायो वेस्ट प्रोसेसिंग की वजह से जो काउ डंग अदरवाइज वेस्ट हो जाता था उसी चीज को अब आप बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर के तरीके से वापस से एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने में यूज कर पाएंगे. काम क्या चल रहा है इसमें? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. कंपोनेंट किसका है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. ठीक है जी, ये बेसिक चीजें. चलिए आगे चलते हैं. व्हाट इज गोबर्धन स्कीम? गोबर्धन स्कीम वही बात आ जाती है, फिर एक्रोनिम सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सरकार बनाने को पसंद करती है. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति चलाती है, पहली चीज. दूसरी चीज गोबर्धन इज गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज. धन स्कीम, धन से कुछ नहीं. ठीक है जी, 3 इडियट्स की स्पीच भी याद आ रही है. नाउ इम्प्लीमेंटेशन, द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय स्वच्छ भारत ग्रामीण, उसका ही कंपोनेंट है. एंड वेरियस अदर कंपोनेंट्स. इट कंप्राइजेस ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल फॉर क्रिएटिंग क्लीन विलेजेस, फॉर एग्जांपल एक हो गया ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस एंड मैनेजिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन विलेजेस. राइट, सो उसी से ही रिलेटेड है. द एम इज टू कीप विलेजेस क्लीन, इंक्रीज इनकम ऑफ रूरल हाउस होल्ड यूजिंग दिस वेस्ट टू एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है. राइट, स्कीम ऑल्सो एम्स टू क्रिएट न्यू रूरल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज. ठीक है जी, और फार्मर्स को इनकम भी जनरेट हो जाए, बिकॉज कैटल हर फार्मर ऑलमोस्ट रखता है, तो उसको यूज करके फार्मर के लिए इनकम जनरेट हो जाए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज मोशन ऑफ थैंक्स.
Now, motion of thanks has been recently in news. In fact, ये हर साल न्यूज में हो जाता है जब से the present government has come to power, because इसमें amendments की बात आ जाती है और गवर्नमेंट ने अगर मोशन ऑफ थैंक्स में अमेंडमेंट हो जाए और वो पास हो जाए तो क्या वो डिफीट ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन कमिंग अप टू क्वेश्चन. पहली चीज तो ये कि प्रेसिडेंट को एड्रेस करना होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहती है, 87 आर्टिकल कहता है दैट द प्रेसिडेंट हैज टू एड्रेस, उसको स्पेशल एड्रेस कहते हैं, इन 2 स्पेशल ओकेजन्स. स्पेशल एड्रेस है तो स्पेशल ओकेजन्स में होता है. पहला ओकेजन क्या है, पर्टिकुलरली ज्वाइंट सिटिंग्स जब होती है, पहला ओकेजन है फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. ठीक है जी, पहला सेशन. और उसके बाद जब पहली बार जनरल इलेक्शन के थ्रू होके जो हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा है, वो इलेक्ट होके आती है, तो पहला वो वाला सेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल. इसमें से एक चीज आपने ख्याल रखनी है. माई क्वेश्चन, माई होमवर्क टू यू इज बाय विच अमेंडमेंट, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को CAA लिखता हूं, ये चीज आप याद रखिएगा. बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो प्रोविजन थी प्रेसिडेंट की कि वो हर सेशन के शुरुआत से पहले एड्रेस करेगा दोनों हाउसेस को, वो नदारद कर दी गई थी. विच अमेंडमेंट डिड दैट? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू गाइज. इसको आपने ढूंढ के रखना है. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई वुड बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन. ठीक है जी. तो हम ऐसा किया करेंगे, एक कॉन्टिन्यूइंग लूप रखेंगे जिसके तहत हम अपने अलग अलग लेक्चर्स को लिंक करते रहेंगे. नाउ ये चीज क्लियर है, बहुत प्लेन एंड सिंपल चीज है. आगे चलते हैं. जो इंपॉर्टेंट है, जहां से MCQ निकल के आ सकता है, वो उस पर सवाल नहीं आएगा. एक स्टेटमेंट ये आएगी कि प्रेसिडेंट शैल हैव टू इन्फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन. प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि मैं जॉइंट सिटिंग क्यों बुला रहा हूं, पहली चीज. दूसरी चीज, इसी एड्रेस को स्पेशल एड्रेस कहा जाता है. नो अदर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड. जब तक प्रेसिडेंट बोलना बंद नहीं करता, जब तक प्रिंसिपल चुप नहीं होगा, तब तक कोई कुछ काम नहीं करेगा. असेंबली चलती रहेगी, कोई बेहोश हो चाहे कुछ हो. ठीक है जी. अब एक और खास बात, अगर मान लीजिए लोकसभा उस टाइम पे एग्जिस्टेंट नहीं है, तो व्हाट वुड यू डू इन केस, अगर अभी जनरल इलेक्शन नहीं हुए, लोकसभा नहीं आई है, तो फिर होगा क्या कि राज्यसभा अपना सेशन कंडक्ट करेगी, प्रेसिडेंट एड्रेस हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस एड्रेस, अगर हम ज्वाइंट सिटिंग की बात करें, ज्वाइंट सेशन की बात करें, however at the commencement of the first session of the year, if lok sabha is not in existence, तो क्या करेंगे, राज्यसभा आएगी, मिलेगी और चली जाएगी. इट विल होल्ड इट्स सेशन विदाउट द प्रेसिडेंट्स एड्रेस. क्योंकि जरूरी कौन सा कंपोनेंट है, वो जरूरी कंपोनेंट है लोकसभा का. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना होगा कि व्हाट इफ लोकसभा इज नॉट इन सेशन. सो ये इंपॉर्टेंट चीज हमने अगर नोट कर ली, यहां से MCQ निकल कर आता है. दूसरी चीज कि प्रेसिडेंट शैल हैव टू इन्फॉर्म द रीजन व्हाई द जॉइंट सिटिंग हैज बीन इन्वोक्ड और हैज बीन कॉल्ड अपॉन. और उसके अलावा जो चीज यहां पे बोली दैट कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा किसी भी प्रकार के बिजनेस का. नाउ ये बेसिकली फर्स्ट सेशन जो है उसमें जब सारे के सारे ओथ्स हो जाते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है. अब उसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कुछ वो मैटर्स हम देख लेते हैं एक बार. द प्रोविजन दे रिक्वायर दैट rules regulating such procedure of either house for allotment of time for discussion in the matters of president's address. ये सारी की सारी चीजें जो हैं आर्टिकल 87 क्लॉज 2 में दी हुई हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि डिस्कशन होगी तो कैसे होगी. दूसरी चीज, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ राज्यसभा का रूल 15 क्या कहता है. रूल 15 याद रहे ना रहे, ये याद रखना कि राज्यसभा की जो रूल बुक है उसमें क्या बोला हुआ है, दैट डिस्कशन ऑन मैटर्स रेफर्ड टू इन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस takes place on motion of thanks moved by a member and seconded by another member. मतलब पहली चीज तो ये कि प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा. दूसरी चीज ये, उसके बाद एक मोशन ऑफ थैंक्स निकाला जाएगा जो कि एक मेंबर मूव करेगा, सिंगल मेंबर, और एक मेंबर उसको सेकंड करेगा. अगर आपने इलेक्शंस लड़े हैं या कभी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे कभी ये इलेक्शंस में भागीदारी की है, तो एक नाम जो है वो नॉमिनेट करता है, दूसरा सेकंड करता है. तो मोशन ऑफ थैंक्स, ये मोशंस में भी यही सेम चीज होती है. मोशन ऑफ थैंक्स इज जस्ट लाइक एनी अदर मोशन, जहां पे एक मेंबर उसको कहता है कि हाँ मैं ये मोशन मूव कर रहा हूं, दूसरा कहता है मैं सेकंड करता हूं, करने दो इसको. ठीक है जी. मेंबर्स हु आर टू मूव एंड टू सेकंड द मोशन आर सिलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. कि ये करेगा कौन, मोशन ऑफ थैंक्स.
ठीक, सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे रिलेटेड मुद्दे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स टेक केयर करती है। कारण क्या है? क्योंकि मोशन ऑफ थैंक्स एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मुद्दा है। दिस इज अ सिंपल थिंग जो कि अगर आप लक्ष्मीकांत फॉलो करते रहते हैं तो आपको पता होगा कि इट इज वन ऑफ द वेज कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स फेल हो गया तो इट इज इन वन फॉर्म expressing the lack of confidence in the government apart from 4 other types of ways जहां पे गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं है, ये चीज प्रोजेक्ट की जाती है। वन ऑफ द वेज इज रिजेक्शन ऑफ अ मनी बिल। दूसरा तरीका क्या है कि सेंसर मोशन पास हो जाए या फिर एक एडजर्नमेंट मोशन पास हो जाए। पॉलिटिकल लेक्चर्स में वी हैव कवर्ड दिस, द डिफीट ऑफ गवर्नमेंट ऑन अ वाइटल इशू, for example farm bill, CA, NRC, all these things. Now all these things are also related with the topic of anti-defection law as well, right? This was also in news ever since January 2020. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक मामला चल रहा था कि स्पीकर की कितनी पावर है। क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को कह सकता है कि आप इतने टाइम के अंतराल में, इतने टाइम पीरियड में आप डिसीजन दें या ना दें? सो ऑल ऑफ दैट वाज इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक बात आती है, दैट इज पासिंग ऑफ अ कट मोशन। बजट के दौरान जहां पे ऑपोजिशन कहे कि हाँ नहीं, इतनी पॉलिसी में, इस पॉलिसी में इतना पैसा नहीं जाना चाहिए, तो वो कट मोशन अगर कर देती है। 3 प्रकार के कट मोशन होते हैं, एक पॉलिसी कट मोशन, एक इकोनॉमी कट मोशन, राइट, एंड टोकन कट मोशन। तो तीनों के प्रकार के कट मोशन जो हैं वो एक तरीके का तमाचा है सरकार के कॉन्फिडेंस के ऊपर। इस वजह से ये चारों एंड द फेलियर ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स, दे बिकम समथिंग जो कि ये शो करता है कि सरकार के प्रति जो जनता का कॉन्फिडेंस है वो कम है, एंड दैट इज व्हेन फ्लोर टेस्ट नीड्स टू बी पास्ड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट कम्स द टॉपिक ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बट आर रजिस्टर्ड, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपकी लक्ष्मीकांत बुक का ना एक कॉन्स्पिक्यूअस पोर्शन है जो कि 55 ऑड लेक्चर्स के बाद निकल के आता है और हम इसे छोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR, ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिस रिपोर्ट के तहत ये बताया कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो दुगना बढ़ गई हैं 2010 से 2019 के बीच में, जिसकी वजह से एक इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल ADR इज एन इंडियन नॉन गवर्नमेंटल और रादर इंटर गवर्नमेंटल नॉन NGO है जो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे काम करती है। वो इसी प्रकार का डेटा ढूंढती रहती है जहां पे देखती है कि कहां पे डेमोक्रेसी को हताश होना पड़ रहा है या फिर उसको हताहत होना पड़ रहा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मेरा हिंदी सिर्फ शौक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, just in case you are imagining. Now registered unrecognized political parties कौन कौन सी होती हैं? I'm pretty sure कि आप भी बहुत बौखला गए होंगे कि सर कितनी देर से बोल रहे हैं, मेरे साथ भी वही slip of tongue हो रहा है। Now either the newly registered parties जिनको enough percentage of votes नहीं मिला है in the assembly or in the general elections to become a state party या फिर national level party. So state party और national party, अगर आप national level पे नहीं कुछ एक minimum percentage of votes ले पाए या आप state level पे minimum percentage of votes नहीं ले पाए तो आप registered तो होंगे but आपको recognition नहीं मिलेगी। फिर उस पार्टी को कुछ बेनिफिट्स होते हैं थ्रू द इलेक्शन कमीशन, वो नहीं मिल पाते हैं। सो व्हाट इज अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी? पहले तो ये देख लेते हैं। सो अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन बी ईदर अ स्टेट पार्टी और अ नेशनल पार्टी, जिसके लिए कुछ कंडीशंस लेड डाउन की हैं। टू बिकम अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, चाहे आप स्टेट लेवल की बात करें, नेशनल लेवल की बात करें, आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स लेनी पड़ेगी। आप क्या फॉर एग्जाम्पल आई थिंक देर इज दिस पर्सन बाय द नेम ऑफ टीटू चटरावाला, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, जिसने ये बात कही थी, भाजी मेरे फैमिली दे इन्ने बंदे ने मैनू इन्नियां वोटां पईयां ने, मतलब उसको फैमिली से भी कम नंबर ऑफ पर्सन्स इन हिज फैमिली, उससे भी कम वोट्स पड़ी थी, तो उसका तो दिवालिया पिट गया था, राइट। सो बेसिकली यहां पे वो बात आती है, इवन इफ यू आर रजिस्टर्ड यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी क्या तरीका है टू बिकम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी?
रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, कहां पे रजिस्ट्रेशन होगी, इलेक्शन कमीशन प्रोसेस तैयार करता है, डिसाइड करता है। रिकॉग्निशन मिलेगी या नहीं मिलेगी तो स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे आपने मिनिमम अमाउंट ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स अगर आपने यूसर्व किए हैं, इकट्ठी की हैं, बटोरी हैं ड्यूरिंग एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन या फिर जनरल इलेक्शंस की बात करें तो वहां पे आपको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाता है। दिस recognition is granted by the election commission itself to the parties who determine their rights to certain privileges like allocation of any party symbol हो गया या फिर कह लीजिए provision of time for political broadcast कि आपको कितना समय मिलना चाहिए कि आप बोलेंगे अपना मैनिफेस्टो जो है, आपको कितना टाइम मिलना चाहिए कि आप अपना रेडियो पे ब्रॉडकास्ट कर सके, टीवी पे आपको कितनी एड्स मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इलेक्शन कमीशन रेगुलेट करता है। एंड अगर आप एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं तो आपको बेहतर समय मिलेगा, ज्यादा आपको तवज्जो मिलेगी। अगर आप एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है तो आपको इन सब चीजों में बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जो होगा फिर आपको बहती गंगा में थोड़ा सा हाथ धोने को मिल जाएगा, दैट इज इट। अब दिक्कत यह है कि इन अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंडिंग बहुत आ रही और वो फंडिंग का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सो वो चीजें आज हम देखेंगे। सो इलेक्शन कमीशन ने अभी रिसेंटली ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पार्टी फंड्स एंड इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की थी। सो आपको सिर्फ यहां तक नाम आएगा, इससे ज्यादा नाम नहीं आएगा। ये इलेक्शन कमीशन का रोल है, एडीआर का इसमें रोल नहीं है। बेसिकली एडीआर अलग तरीके से चल रहा था। इलेक्शन कमीशन ने ये एक रिपोर्ट सबमिट की थी। नाउ दिस बेसिकली दीज गाइडलाइंस और रिपोर्ट ये बेसिकली एप्लीकेबल है टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एज फ्रॉम 2014 से ये अप्लाई होती हैं। All recognized parties or rather all unrecognized parties are required to submit their requisite reports, जो कि उस स्टेट के चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स सीईओज हैं, जो लोकल सीईओज हैं, जनरली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, डीसीज होते हैं, डीएम्स होते हैं, तो उनको आपको ये रिपोर्ट जो है सबमिट करनी पड़ेगी। अलग भी हो सकते हैं, अलग प्रोविजनिंग भी हो सकती है। नाउ जो गाइडलाइंस थी उसमें कहा था कि आप अपने अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट्स भेजेंगे, आप कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स भेजेंगे, इलेक्शन एक्सपेंडिचर कितना किया है वो भेजेंगे, और इट शुड बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स जो स्टेट के जो हैं उनको आप सबमिट करेंगे विद इन 3 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ द सेम फॉर व्यूइंग बाय द पब्लिक। जैसे ही ये सारा कुछ मिलेगा आपको 3 दिन के अंदर अंदर जो है पब्लिक डोमेन में डाल देना है। ये चीज भी लिमिट कर दी गई थी। नाउ देखा ये गया रिसेंटली देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी देयर आर 2360 पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग इन इंडिया। जस्ट इमेजिन 2360 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एंड आई एम अश्योर्ड कि आई एम सर्टेन कि आपको ना 1 2 3 4 5 6 10 हद से हद पॉलिटिकल पार्टीज के नाम याद होंगे। हद से हद 11 कर देंगे, उससे आगे खींचना मुश्किल हो जाएगा। टीटू शटनावाला की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी क्या पता है, गॉड नोज। एंड इसमें से 97.5% आर अनरिकॉग्नाइज्ड एज ऑब्वियस, है ना। और इनफैक्ट 1112 सिंपल फिगर है याद रखने में, 1112 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज इन 2010, आज वो 2301 हो गई हैं। 2019 का डेटा है और आगे बढ़ रही होंगी। ठीक, यही चीज एक मेजर कंसर्न है। और एज फार एज डोनेशंस टू दीज पार्टीज आर कंसर्न्ड, करीब कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, ओनली 78 या फिर 3.4% ऑफ सच पार्टीज रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द टोटल 2301। 2301 पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रजिस्टर्ड हैं लेकिन रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, उनको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। उसमें से सिर्फ 78 पार्टीज ही सबमिट कर रही हैं, और वो भी उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए किया, उसके आगे का अभी अता पता नहीं। ऑब्वियसली अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। सो व्हाट आर रिकमेंडेशन जो कि एडीआर की रिपोर्ट में निकल कर आई थी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने एक बात बोली कि ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं दे वर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस एंड इन फंक्शनिंग, उनको आप वीड आउट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा था वीड, हाँ ये वीड आउट कर दीजिए, उनको खत्म कीजिए, ये डुप्लीकेसी खत्म कीजिए, ये फालतू में एग्जिस्ट कर रही है और कुछ नहीं हो रहा। फॉरेन फंडिंग यहाँ पे आ रही है फॉर वेरियस अदर पर्पसेस। नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट के जरिए नॉन स्टेट एक्टर बनने की फिराक में। सो देन देयर शुड बी अ रेगुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज
particularly avoiding money laundering, corrupt electoral practices and abuse of money power, ये चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक। Apart from that, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड इम्पोज स्ट्रिक्टर नॉर्म्स, अभी भी स्ट्रिक्ट हैं बट स्ट्रिक्टर नॉर्म्स एज फार एज रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस एज अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ कंसर्न। उसके बाद आईटी स्क्रूटनी होनी चाहिए ऑफ दीज अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, इट शुड बी टेकन अप, स्पेशली वो पार्टीज जो कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हैं लेकिन इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर रही। क्यों भाई, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर रही, पर्पस क्या है, राइट? एंड दैट इज इट। I thank you all for being such a patient listener. I know this was heavy, I know this was a bit lengthy, but मुझे इतना विश्वास है कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें हिम्मत और जज्बा बहुत होता है। So उसी हिम्मत और जज्बे की मैं दाद देते हुए आप सबको शुक्रगुजार, आपका सबका शुक्रगुजार हूँ। Thank you so much for listening through this lecture. Have an awesome day ahead. Bye bye and take care. God bless.